RUSA project, State Project Directorate, RUSA, Madhya Pradesh, Chief Editor of Prakarsh, State Newsletter of Department of Higher Education, Government of Madhya Pradesh, Bhopal, convener of 7 Faculty Development Programs, FDPs, on best practices in development of e-content organized by Department of Higher Education, Government of Madhya Pradesh, and received Prashasti Patra from Commissioner of Higher Education in this regard. Now, I cordially invite Dr. Pragesh Agrawal, sir, for his lecture on criteria 7. Sir. Yeah. Sir, your video is not on. Am I audible, ma'am? Yes, sir. आप audible हैं? मेरा वीडियो मैंने ऑन किया था पर वहां मुझे दिख नहीं रहा है. वीडियो सर आपका नहीं दिख रहा है. जी, can you see me? Still we are not able to see you, sir. Your voice is clear and audible. I don't know. I'm trying to show because it happens with all. But the first time I'm logging on Zoom with this device. Okay, sir. But then it is giving a start video, a stop video. I don't know what is happening now. It stopped. Now I'm starting. Okay. Is there any? No worries, sir. Take your time. No problem. Is there any suggestion from there what to do? Because sir, just a minute. Any suggestions? Should we start? Please, video, just video on and off. That I did many times. Your the video is on, but you are not seeing. Just give me a minute. I'm trying something different. Yes, sir. Yes, sir. Take your time. सर आप फिर से कनेक्ट हो जाइए. Okay. Okay. I reconnected, but still the video is not going there. But I think we should proceed further because there is no sense. Am I audible? Yes, sir. You are very much audible. Okay, no problem, no problem. Then I'll just start because मैं दिख नहीं रहा हूँ उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है. Main thing is this कि अपना discussion होना चाहिए. Yes, sir. You sir, okay. Please go ahead with. तो I believe कि मेरी जो screen है screen is audible, screen is visible, sir. Okay, that's fine, that's fine, that's fine. Thank you so much, ma'am. I'm really grateful to the SICA of Madhya Pradesh Bhoj Open University for giving me this wonderful opportunity to discuss with such a learned audience and have some points to discuss on institutional values and best practices. I'm really indeed grateful to the Honorable Vice Chancellor, respected Registrar, the convener of SICA, and Madam Rajan in very specific ways, and all those who are sitting there, because when I'm showing the screen, your pics are small, so I'm not able to identify, but then I'm really grateful to all of you. So here we take off with the presentation, and today we are going to discuss on
institutional values and best practices. So जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा नेट का क्राइटेरिया है, नेट की जो SSR है, इसमें 7 क्राइटेरिया होते हैं। और ये जो 7 क्राइटेरिया हैं, इनमें पहला तो अपना करिकुलर एस्पेक्ट्स का है, दूसरा टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन का है, फिर ऐसे रिसर्च एंड स्टूडेंट प्रोग्रेशन एंड ऑल। एंड जो 7वां क्राइटेरिया हमारा आता है, दैट इज ऑन इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो इसके ऊपर हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, एक बात, मैं जब इस के लिए प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा था तो मुझे एक बात बड़ी अच्छी पढ़ने में आई। दिस वाज अ कोट बाय माइकल मोरपुर्गो एंड ही सेड कि इट्स द टीचर दैट मेक्स द डिफरेंस, नॉट द क्लासरूम। मीन्स जो टीचर होता है वो सारी चीजें मतलब उनके द्वारा की जाती हैं, केवल क्लासरूम या केवल इंफ्रास्ट्रक्चर या केवल बड़ी बड़ी फैसिलिटीज से काम हो, ऐसा नहीं। इट इज अ टीचर एक्चुअली हु मेक्स द डिफरेंस। और जब हम टीचर की बात करते हैं तो नेचुरली टीचर का मतलब केवल क्लास में जाके अपना सब्जेक्ट डिलीवर करना और कोर्स खत्म कर देना, या फिर टेस्ट लेना, एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन करना, रिजल्ट दे देना, वो तो होता ही, ऑफ कोर्स दैट इज द एक्चुअल जॉब ऑफ अ टीचर। बट द टीचर हैज टू बी हेल्पफुल फॉर द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इंस्टीट्यूट। And teacher is the main person who is there to inculcate the institutional values. तो जब हम बात करते हैं institutional values की, तो मेरे कहने का मतलब ये कि जैसे अगर हम बात करें कि जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी है, तो ये यूनिवर्सिटी किस लिए जानी जाती है? या जैसे अगर हम बात करते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, तो वो यूनिवर्सिटी किस लिए जानी जाती है? अगर हम इग्नो की बात करें, सो can any of the honorable participants share with me कि जो इग्नो है, इनका नेट का ग्रेड क्या है, और मतलब इनका नेट का जो लेटर ग्रेड है वो क्या है इग्नो का? Can anybody share with me? Anyone? Actually, I wanted to test whether I am audible or not. That's why I asked this question. There is nothing to test anyone. Am I audible, ma'am? Yes, sir, you are very much audible. Okay, thank you. So what I was wanting to share with you all कि जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, इसका जो नेट का ग्रेड है दैट इज A++। मतलब कैन यू इमेजिन कि जो इग्नो है, इग्नो में लगभग 30 लाख से ज्यादा विद्यार्थी एनरोल्ड हैं, और ऑल ओवर इंडिया में, बल्कि इंडिया क्या, इग्नो के सेंटर्स को बाहर भी हैं, मतलब कई फॉरेन कंट्रीज में भी है। इसके बावजूद इग्नो की जो ग्रेड है दैट इज A++। तो जब इग्नो एक ओपन डिस्टेंस एजुकेशन के साथ अपनी कोर्सेज को चला के भी जब A+ ग्रेड ला सकता है, तो हम बाकी के लोग क्यों नहीं ला सकते? तो हम ये जानते हैं कि NAAC इज अ वेरी एसेंशियल प्रोसेस दीज डेज, और हर संस्थान को NAAC कराना जरूरी है। तो जैसे अब इग्नो है, तो इग्नो को हम किस लिए जानते हैं? हम इग्नो को जानेंगे कि भाई इनका लेटर ग्रेड A++ है, और ये डिस्टेंस एजुकेशन के लिए ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन एजुकेशन के माध्यम से दे प्रोवाइड गुड कोर्सेस, है ना, इसके लिए हम इग्नो को जानते हैं। तो ऐसे हर इंस्टीट्यूट की कुछ वैल्यूज होती है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कह दूं कि मेरा जैसे उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान है, तो मैं अपने इंस्टीट्यूट की वैल्यूज ये कह सकता हूँ कि भाई हमारे यहाँ डिसिप्लिन पे बहुत ध्यान दिया जाता है, अटेंडेंस पे ध्यान दिया जाता है, और हमारे यहाँ ICT का या IT का यूज के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ये हमारी इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज हो गई। हम लोग सोशल सर्विसेज काफी ज्यादा करते हैं, हम लोगों ने काफी एरियाज को, काफी गाँव को हम लोगों ने गोद ले रखा है, हम लोग उनके साथ मिलकर कई तरह के काम करते हैं। तो ये वैल्यूज कहलाते हैं। वैल्यूज का मतलब केवल और केवल हम ये कहें कि पढ़ाई करा देते हैं और कोर्स खत्म कर देते हैं और एग्जामिनेशन देते हैं, रिजल्ट देते हैं, तो एवरीबडी डज, देयर इज नथिंग स्पेसिफिक अबाउट इट। और दूसरी बात जो हमको आज इस प्रेजेंटेशन में करनी है, दैट इज देखिए, देयर आर सो मेनी प्रैक्टिसेस इन द प्रेमाइस। उनमें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए, हियर वी टॉक। तो देखिए, ऐसे है कि जब हम इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज की बात करते हैं,
तो यहाँ पे दो वर्ड्स आते हैं, एक आता है इंटरनलाइजेशन और दूसरा आता है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। तो इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। तो देखिए इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज, जैसे एनीवन, मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारा ये जो आज का सेशन है इसको मैं एक वन साइडेड मोनोलॉग के ऊपर ना रखूं। दैट्स व्हाई आई वुड रिक्वेस्ट एनी ऑफ द पार्टिसिपेंट कि अगर आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे तो दैट विल बी नाइसर, मतलब हम इसको एक लाइवली बना पाएंगे। Can anyone throw some light on what do we mean actually by internalization? मतलब किसी भी वैल्यू की इंटरनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? Any of the honorable participant, if you can discuss, I'll be grateful. Uh, I don't know whether I'm visible, whether I'm audible or not, but then in any case, I believe कि I'm audible, but nobody is responding for that reason. So here I go ahead. Sir, sorry to interrupt you, sir. Sir, you are very much audible, but there is no response from respondents. But still, you must carry on. Okay, okay. Maybe somehow they will post at the chat box. I'll carry on. I'll carry on. No problem. Yeah, yeah. So actually, they are saying that they are not allowed to unmute. That is the reason. Okay, acceptance to set norms. If anyone has any queries, I'm talking to the respondents, the participants, they should raise your hands, then sir will answer their queries. Okay. Yeah, that will be nicer actually. Yes. Yeah. So I saw Professor Yasmin Sharma actually replied कि internalization means acceptance to set norms. That is very correct. मतलब it is really wonderful because you know जब भी हम कोई values बनाते हैं, जैसे इंस्टीट्यूट ने कोई वैल्यूज बनाई, जैसे मैंने आपसे ये कहा कि मेरे इंस्टीट्यूट की वैल्यूज है कि हम यहाँ पे डिसिप्लिन पे बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि हमको ये लगता है कि जब कोई संस्थान है, कोई विश्वविद्यालय है या महाविद्यालय है, जब हम इसकी कुछ वैल्यूज डिसाइड करते हैं, वैल्यूज इनकलकेट करते हैं, तो निश्चित रूप से वो काफी सोच समझ के, काफी डिस्कशन के बाद होती है। और जब हर एक व्यक्ति उसको अपने अंदर आत्मसात कर लेता है, जैसे मैं IEHE भोपाल में पदस्थ हूँ, मैंने यहाँ की वैल्यूज को जब एक्सेप्ट कर लिया और मैंने उनको आत्मसात कर लिया कि ओके ये संस्थान जो है ये डिसिप्लिन पे बहुत ध्यान देता है, तो सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहूंगा, मैं दूसरों को डिसिप्लिन में रहने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा और मैं इस वैल्यू की रिस्पेक्ट करूंगा। देन इट इज कॉल्ड द इंटरनलाइजेशन। और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का मतलब होता है कि फिर ये जो वैल्यूज हैं ये पूरे इंस्टीट्यूट में हम उसको लागू कर दें, पूरे संस्थान में या पूरे विश्वविद्यालय में, पूरे महाविद्यालय में लागू कर दें, तब वो कहलाता है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। तो जब हम NAAC की पीयर टीम के साथ कोई भी वैल्यू की बात करते हैं, तो जैसे मुझे याद है कि हमने अपने संस्थान में एक तो बेस्ट प्रैक्टिस बोली थी कि सर हम जो है हम ICT के ऊपर बहुत काम करते हैं, तो उन्होंने इसको एक वैल्यू समझ लिया कि ठीक है साहब ये आपकी, हमने कहा सर हम डिसिप्लिन पे बहुत काम करते हैं। तो वो जिस से बात कर रहे थे, मतलब संस्थान में जिसके भी पास जा रही थी NAAC की टीम, तो वो उनसे पूछते थे कि अच्छा आप यहाँ पे IT सर्विसेज को यूज करते हो क्या, उसमें आप क्या क्या करते हो, आपको संस्थान की आपकी कोई IT पॉलिसी है क्या, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की IT पॉलिसी के बारे में आइडिया है क्या, ये सारी चीजें पूछी जाती। मतलब वो ये देखना चाह रहे थे कि जो वैल्यूज हम बता रहे हैं वो लोगों ने इंटरनलाइज के साथ साथ इंस्टीट्यूशनलाइज की है कि नहीं। इंस्टीट्यूशनलाइज कर देना फिर भी आसान है। कैसे आसान है कि जैसे मैं संस्थान में डायरेक्टर हूँ, मैंने एक आदेश निकाल दिया कि आज के दिनांक से संस्थान के सभी लोग जो है वो ICT पे ही काम करेंगे, ICT का उपयोग करेंगे, विद्यार्थियों को डिसिप्लिन में रहने का बोलेंगे, फाइन, हो गया इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, एवरीबडी इज नाउ बाउंड टू फॉलो दैट रूल। बट देन उन्होंने उस चीज को इंटरनलाइज किया कि नहीं ये बहुत जरूरी है। तो मैं सभी रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट से निवेदन करूंगा कि कोई भी जब हम बेस्ट प्रैक्टिस की बात करते हैं या जब हम इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज की बात करते हैं, तो इसमें दो चीजें हमको ध्यान रखनी है। एक तो हमको इसको इंटरनलाइज करना है, दूसरा हमको इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना है। अब बात आती है बेस्ट प्रैक्टिसेस की, तो सवाल ये उठता है कि प्रैक्टिसेस तो कई होती हैं। हम जानते हैं कि साहब हमारे संस्थान में या कोई भी बच्चा अगर
मार्कशीट के लिए अप्लाई करता है तो हम उसको दे देते हैं, अगर वो टीसी के लिए अप्लाई करता है तो हम दे देते हैं, लाइब्रेरी में जाता है किताब मांगता है हम देते हैं। ये सारी प्रैक्टिसेस हैं जो नॉर्मली हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में यदा कदा होती रहती है। लेकिन अब इनमें बेस्ट का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय बेस्ट प्रैक्टिसेस? देखिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस वाला जो कंसेप्ट है, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है ये जनरल नहीं होती, ये स्पेसिफिक होती है। बेस्ट प्रैक्टिसेस हर टीचर की स्पेसिफिक हो सकती है, बेस्ट प्रैक्टिसेस हर डिपार्टमेंट की स्पेसिफिक हो सकती है, हर कॉलेज की, हर यूनिवर्सिटी की, हर इंस्टीट्यूट की अलग बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती है। तो बहुत हद तक संभव है, 90% संभव है कि एक इंस्टीट्यूट की बेस्ट प्रैक्टिस दूसरे संस्थान में बिल्कुल वैसी ही ना हो। वो नाम भले ही एक जैसा हो सकता है लेकिन एग्जैक्टली तो वो बिल्कुल भी नहीं होगी। ओके, तो ये कहलाती है बेस्ट प्रैक्टिसेस का मतलब। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस का मतलब आपने अपने संस्थान में जो एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस हैं उनमें से कुछ को चिन्हित करके उनके ऊपर आपने ऐसी क्या मेहनत की है कि आप उनको बेस्ट प्रैक्टिस कह सकते हो। मतलब आप ये कैसे कह सकते हो कि ये चीज हमारे संस्थान की बेस्ट है, ये हमारे कॉलेज की बेस्ट है, क्योंकि जब आप इसको बेस्ट कहोगे तो आप इसको अपनी एसएसआर में भी अप्लाई करोगे। एसएसआर का 7वां क्राइटेरिया जो कि 100 नंबर का है हमारा, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस का, उसमें हम लिख के देंगे। वो हमसे पूछते हैं कि बताइए आपके कॉलेज की या आपके संस्थान की 2 बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं। तो हमको बड़े सावधानी से चिन्हांकित करना चाहिए कि हमारे कॉलेज में कौन कौन सी प्रैक्टिसेस चलती है। तो कुछ प्रैक्टिसेस तो ऐसी जो नॉर्मल है, वो मतलब वो होती है, मतलब आपको पता है कि साहब हमारे यहाँ क्लास लगती है तो सब क्या लगती है, हमारे यहाँ टेस्ट होता है तो सब क्या होता है। लेकिन अगर आप ये बोलो कि हमारे यहाँ क्लास तो लगती है लेकिन उसमें हम ये टीचिंग मेथडोलॉजी लगाते हैं, या हम एग्जाम तो लेते हैं लेकिन हम उसमें बच्चों से ऐसे डिस्कस करते हैं, तो वो एक बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है। और तीसरी चीज जो यहाँ पे पूछी जाती है दैट इज ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है, देखिए हम लोग जब कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं तो एक जनरल बात ये हो जाती है कि भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो हम समझते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन। बट इन सबसे ऊपर और इन सबको एनकम्पास करने वाली जो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे पास कई प्रकार की है। अब उनमें सोशल कौन कौन सी होंगी? अब जैसे आप देखिए कि हमारे संस्थान में मान लीजिए एनसीसी है या एनएसएस है, तो हम उसके द्वारा जो कार्यवाही करते हैं वो हमारी सोशल कैसे होंगी। मतलब हम किसी गांव में जाते हैं, वहां पे हम एडल्ट लिटरेसी के कोर्स चलाते हैं, हम वहाँ के बच्चों को किताबें देते हैं, या हम उनको कोई लाइफ कोपिंग स्किल्स हम सिखाते हैं, या उनको कोई करियर ओरिएंटेड स्किल्स सिखाते हैं। तो ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाली बात हो जाएगी। तो आज का जो हम लोग ये जो डिस्कशन कर रहे हैं उसके मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज क्या है उनको समझें, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है इनको हम समझें और इनके बारे में आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब आगे हम देखें कि बेस्ट प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है। तो ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस की एक तरह की हम जिसको डेफिनेशन बोलेंगे, ये मुझे नैक के इंस्ट्रक्शन मैनुअल से मिली है। मतलब इसकी कोई मेरी कोई बड़े निकल के शब्द नहीं है, लेकिन मैंने वहीं से इसलिए लिया क्योंकि जिस कॉन्टेक्स्ट में हम आज ये चर्चा कर रहे हैं उसका अगर बैकग्राउंड हमको पता होगा तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। तो देखिए नैक क्या कहता है, The best practice benchmarking is an inductive approach to quality management in higher education institutions with a focus on practice and continuous improvement. And it is a tool to depict the institutional distinctiveness. दो बातें आती हैं। तो now I would request honorable participants कि please थोड़ा सा यहाँ पे आप interact कीजिएगा way of चैट। आप चैट बॉक्स में भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि द बेस्ट प्रैक्टिस बेंचमार्किंग इज एन इंडक्टिव अप्रोच। सो व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्टिव अप्रोच टू क्वालिटी मैनेजमेंट? मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए इंडक्टिव अप्रोच इन अ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विथ अ फोकस ऑन प्रैक्टिस एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। मतलब हम कोई एक प्रैक्टिस को ले लेंगे, एक पर्टिकुलर विधा को हम पकड़ेंगे, पर्टिकुलर जो मेथड है उसको पकड़ेंगे और उसको फोकस करके उसको हम लगातार बढ़ाते जाएंगे, इंप्रूव करते जाएंगे, जिससे हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की क्वालिटी इंप्रूव हो,
and then it becomes an inductive approach. Now, can anyone would like to share on this issue? What is the meaning of actually inductive over here? Can would anybody like to comment on that? I think if somebody wants to comment, you can raise hands and then we can discuss, because they'll unmute you. Any one of you? Any one of honorable teachers? What do we mean by an inductive approach? देखिए, inductive approach का मतलब होता है कि एक ऐसी पद्धति जो एक व्यक्ति करे तो दूसरा भी उसको करने के लिए एक तरह से प्रेरित हो जाए. Very correct, very correct, very correct. Professor Yasmin Sharma again replied, it starts with observation and will make a whole concept from specific to general. Mr. Tiana Chaudhary. Okay, so wonderful. ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं कि इंडक्टिव अप्रोच का मतलब ये रहता है कि हम देख रहे हैं कि हमारे कॉलेज में कोई चीज हो रही है और हमको ये लग रहा है कि वो चीज अच्छी है, उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको हम भी उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं. दैट इज एक्चुअली मींस दैट इज द मीनिंग ऑफ इंडक्टिव अप्रोच. एंड फिर उसमें एन अप्रोच बाय व्हिच वी गेट अ जनरलाइज्ड रिजल्ट. वेरी करेक्ट. Professor Brajesh Kumar Sharma replied, sir, wonderful solution. An approach by which we get a generalized result. Very correct thing. तो मतलब जब हम एक बेस्ट प्रैक्टिस को पकड़ेंगे, एक प्रैक्टिस को पकड़ेंगे, उसको हम बेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे, सब लोग उसको इंटरनलाइज करेंगे और उसके बाद सब लोग उससे जुड़ते चले जाएंगे और संस्थान की, कॉलेज की जनरल क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छे से इंप्रूव होगी और फिर आगे चल के ये हमारे संस्थान की एक यूनिक चीज बन जाएगी. मतलब इट इज अ टूल टू डिपिक्ट द इंस्टीट्यूशनल डिस्टिंक्टिवनेस. मतलब ये संस्थान की एक डिस्टिंक्टिव मेथड बन जाएगी. दैट इज द मीनिंग ऑफ इंडक्टिव बेस्ट प्रैक्टिस. अब देखिए, ये जो 7वां क्राइटेरिया है हमारा, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये क्राइटेरिया 100 नंबर का है. इस क्राइटेरिया में हमारे पास 3 की इंडिकेटर्स है. मतलब हमारे पास 3 सेक्शंस हैं जिनमें हमको जवाब देने होते हैं, जिसमें पहली है इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर, एंड दूसरा है बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर, तीसरा इंस्टीट्यूशनल डिस्टिंक्टिवनेस के ऊपर. अब ये याना चौधरी जी जो, आई एम नॉट श्योर वेदर मिस्टर और मिस, आई एम नॉट श्योर, सो आई एम नॉट टेकिंग एनी जेंडर स्पेसिफिक टर्म, बट इट इज रिटन बाय दिस पर्सन कि यूसेज ऑफ गूगल क्लासरूम बाय वन टीचर मे बी यूज्ड बाय अदर्स आल्सो. एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई मीन टू से, कि अगर कॉलेज में एक किसी टीचर ने गूगल क्लासरूम का उपयोग शुरू किया तो फिर बाकी के लोग भी उसको देख देख के सीखें और उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश करें. दैट इज द मीनिंग ऑफ इंडक्टिव अप्रोच. वेरी करेक्ट. वंडरफुल आंसर, वंडरफुल आंसर. तो अभी ये जो हमारा 7वां क्राइटेरिया है, इसमें 3 की इंडिकेटर्स हैं. पहला है हमारा जो इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर है, ये 50 नंबर का है. फिर वो चाहे यूनिवर्सिटी का एसएसआर हो या ऑटोनॉमस कॉलेज का हो, एफिलिएटेड यूजी पीजी, सबके लिए 50 नंबर का है. दूसरा जो हमारा जो की इंडिकेटर है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस का है. ये भी 30 नंबर का और इंस्टीट्यूशनल डिस्टिंक्टिवनेस भी 20 नंबर के है. मतलब कुल मिला के ये जो 50, 30 और 20 का जो क्लासिफिकेशन है, ये यूनिवर्सिटी के लिए, ऑटोनॉमस कॉलेज के लिए, एफिलिएटेड कॉलेज के लिए इट रिमेन्स दी सेम. ओके, तो ये इनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे. अब देखिए, ये जो 3 की इंडिकेटर्स हैं हमारा 7वें क्राइटेरिया की, जैसे हमने बात कही, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बेस्ट प्रैक्टिसेस, और तीसरा आता है हमारा इंस्टीट्यूशनल डिस्टिंक्टिवनेस. तो इनके ऊपर हम लोग अभी देखिए क्या है कि जो पहला हमारा की इंडिकेटर है, उसमें हम देखें, उसमें पहला जो हमारा क्वेश्चन है, दिस इज QLM 7.1.1. आप देखेंगे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 7.1.1 QLM. Would anybody like to comment here कि what is the meaning of QLM here? Chat box में please you can write if you would like to comment. ये 7.1.1 के नीचे लिखा है QLM. What does that mean? वो Q1M जैसा दिख रहा है, but that is actually QLM. If anybody wants to answer, very correct. Very correct. I think Miss Sarika Sharma has answered
कि दैट इज एक्चुअली क्वालिटेटिव आंसर। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। एक्चुअली जब हम नैक में एसएसआर में जवाब देते हैं तो दो तरह के मैट्रिक्स होते हैं। मैट्रिक्स मतलब जिनकी सहायता से मेजर किया जाता है। उसमें से QLM का मतलब होता है क्वालिटेटिव मैट्रिक्स, मतलब इसका हमको क्वालिटेटिव आंसर देना है। इसमें कहीं हमको बताएंगे कि आपको आंसर 300 वर्ड्स में लिखना है, 500 वर्ड्स में लिखना है, 1000 वर्ड्स में लिखना है। जबकि दूसरे तरह का जो एक इंडिकेटर कभी हमको आगे मिलेगा वो होता है QNM। QNM वो मिलेगा हमको, वो अपन जब मिलेगा तब देखेंगे। तो ये क्वालिटेटिव है, इसमें हमको एक आंसर देना है। तो ये क्या पूछ रहे हैं? मेजर्स इनिशिएटेड बाय द इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन ऑफ जेंडर इक्विटी ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। मतलब देखिए कितनी अच्छी बात है। कौन कौन से तरीके आपने अपने कॉलेज में अपनाए हैं जिनकी सहायता से हम जेंडर इक्विटी को, मतलब मेल फीमेल की बराबरी को, गर्ल्स बॉयज के लिए बराबरी की सुविधाएं और बाकी की चीजों को हम जिसके हम प्रमोट करते हैं, ऐसे कौन कौन से तरीके हमने अपनाए हैं। और इसके लिए हमको 500 वर्ड्स में एक जवाब देना है। तो अब आप ये कह सकते हो कि सर हमने हमारे कॉलेज में गर्ल्स और बॉयज की जो सेपरेट क्यूज हैं वो हमने खत्म कर दी हैं। अगर उनको फी काउंटर पे खड़ा होना है तो गर्ल्स के लिए कोई अलग से फी काउंटर नहीं है, वो सेम है, बॉयज के साथ ही कर दिए। चलिए आपने गर्ल्स को बॉयज के साथ लगा दिए, लेकिन बॉयज को भी आपको ये कहना है कि अगर हम कॉलेज में रंगोली प्रतियोगिता भी करते हैं, अगर हम कॉलेज में कोई फूड स्टॉल भी लगाते हैं तो हम दोनों को बराबर मौका देते हैं, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो। आई और दोनों के बीच में इक्वल कंपटीशन है। मैंने देखा कई बार, मैंने देखा हमारे संस्थान में, मैंने कई बार देखा कि जो सोलो डांस होता है, अब जैसे शिव जी का तांडव डांस होता है, तो सोलो डांस में हमारे यहाँ जो कंपटीशन हुआ IEHE भोपाल में, कभी तांडव डांस के ऊपर कोई लड़की का फर्स्ट प्राइज लग गया, कभी उसके ऊपर किसी फर्स्ट प्राइज लग गया। हम उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं करते। कभी मान लीजिए हमने कोई यहाँ पे फूड स्टॉल्स लगाए तो पता चला सब लड़कों के फूड स्टॉल्स बहुत अच्छे हो गए, उनको ज्यादा बिक्री हुई, उनको नंबर 1 मिल गया। तो वो ये पूछते हैं हमसे कि आपके कॉलेज में आपने ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज लगाई, हाँ, और आपने मतलब कि जेंडर अपने को डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब जेंडर इक्विटी एंड सेंसिटाइजेशन इन करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज फैसिलिटीज फॉर वीमेन ऑन कैंपस एक्सेट्रा विद इन 500 वर्ड्स। मतलब आपने सेंसिटाइज करने का काम कैसे किया। देखिए व्हाट डू यू मीन बाय सेंसिटाइजेशन? सेंसिटाइजेशन का मतलब होता है कि उनसे चर्चा करना, गर्ल्स हो बॉयज हो मेल्स हो फीमेल्स हो, उनसे चर्चा करना कि भाई ये जो काम है ना ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अब आप ये देखिए कि अगर आपको अपने ऑफिस में अकाउंट्स की फाइल मेंटेन करना है तो क्या आप बोलेंगे कि कोई मेल ही करेगा इसको या कोई फीमेल ही करेंगी इसको? नो, ये जेंडर स्पेसिफिक है, तो सबको सेंसिटाइज करना है, ठीक है। और इसके लिए आपने करिकुलर एक्टिविटीज में, को करिकुलर एक्टिविटीज में आपने क्या मेजर्स किए हैं, कौन सी आपने स्पेशल फैसिलिटीज विमेन के लिए दी हैं अपनी कैंपस में, और आपका एनुअल जेंडर सेंसिटाइजेशन एक्शन प्लान क्या था। मतलब प्लान देखिए, आपको पता है IQAC, IQAC हर कॉलेज में होना चाहिए, IQAC हर संस्थान में होना चाहिए। IQAC साल के अंत में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा एक काम करती है? Would anybody like to comment? IQAC, what is the main job of IQAC to be accomplished at the end of the session? Anyone? मतलब सत्र समाप्त होने के बाद IQAC सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा करती है? क्या कोई बताएगा? आपको याद होगा? You can write in the chat box. I am waiting क्योंकि कभी कभी चैट बॉक्स में जवाब आता है। Okay, वे रफत फातिमा has written IQAC एक महत्वपूर्ण फीडबैक लेने का। ओके, वेरी नाइस। एनी अदर आंसर? मेरा क्वेश्चन ये है कि IQAC साल के अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण काम करती है, वो क्या करती है? फीडबैक लेती है, इज राइट आंसर, राइट आंसर। इसके अलावा भी कोई जवाब हो सकता है? नो? ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स असेसमेंट, स्टूडेंट्स असेसमेंट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक और जवाब है। देखिए मैं यहाँ पे अपन लोग एक तरह से माइंड गेम खेल रहे हैं, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो भी सही है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो भी सही है। मैं तो केवल ये देख रहा हूँ कि क्या कोई मेरी सिंक्रोनाइज्ड वे में सोच रहा है कि IQAC का, क्योंकि यहाँ पे हमने बात की कि एनुअल जेंडर सेंसिटाइजेशन एक्शन प्लान, इसके बाद मेरा क्वेश्चन आया कि IQAC साल के अंत में सबसे एक महत्वपूर्ण काम कौन सा करती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि
IQAC साल के अंत में एक महत्वपूर्ण काम करती है कि संस्थान का AQAR जमा करती है, राइट। IQAC का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है कि जब सेशन एंड होता है तो वो अपने कॉलेज का उस साल का AQAR तैयार करके जमा करती है। नाउ व्हाट इज AQAR? Would anybody like to comment on that full form? AQAR. Okay, very good. Annual report. But there is a specific full form for AQAR. मतलब 4 लेटर्स से, चारों का एक स्पेसिफिक फुल फॉर्म है। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। एनुअल क्वालिटी अश्योरेंस रिपोर्ट। परफेक्ट, परफेक्ट आंसर। AQAR का मतलब रहता है एनुअल क्वालिटी अश्योरेंस रिपोर्ट। मतलब एक IQAC बताती है कि सर हमने साल भर में क्वालिटी को अश्योर करने के लिए क्या क्या काम किया है, ये उसकी टोटल हमारी रिपोर्ट है। और अब मेरा क्वेश्चन ये है कि IQAC साल के शुरुआत में सबसे पहला काम कौन सा करती है? आप देखिएगा कि जब आप NAAC की वेबसाइट पे जाएंगे और IQAC के फंक्शंस पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा रहता है कि IQAC साल के शुरू में ये काम सबसे पहले करती है। तो क्या कोई जवाब आपके जहन में आ रहा है कि साल के शुरू में IQAC का एक काम कौन सा होता है जो उसको ऑन पेपर करके सबको उपलब्ध कराना होता है? एनीवन? वेरी परफेक्ट, वेरी परफेक्ट। शर्मा साहब का एक जवाब आ रहा है प्लानिंग टू असाइन द होल एनुअल कैलेंडर। फिर एक जवाब आया प्लानिंग। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। देखिए प्लानिंग, दैट इज द आंसर कि IQAC का साल के शुरू में एक काम रहता है कि आप संस्थान के पूरे साल भर के कामों की प्लानिंग करो। अब प्लानिंग कई अप्रोच में होती है। एकेडमिक प्लानिंग, करिकुलर एक्टिविटीज की प्लानिंग करो, एक्स्ट्रा करिकुलर की प्लानिंग करो, सोशल एक्टिविटीज की प्लानिंग करो। और वैसे एक प्लानिंग यहाँ पे आप IQAC को करना है कि एनुअल जेंडर सेंसिटाइजेशन एक्शन प्लान बनाना है IQAC को। तो अगर अभी तक नहीं बनाया है किसी कॉलेज में, किसी IQAC इंचार्ज ने, तो हम अभी भी बना सकते हैं, क्योंकि हमसे NAAC पूछ रहा है कि हमको इसकी वेब लिंक प्रोवाइड कीजिए कि आपका एनुअल जेंडर सेंसिटाइजेशन एक्शन प्लान क्या था। मतलब आप अपने कॉलेज की वेबसाइट पे, आप अपने कॉलेज की वेबसाइट पे एक आपने एक्शन प्लान डाले होंगे, उसमें एक एक्शन प्लान की हेडिंग ये भी होनी चाहिए, एनुअल जेंडर सेंसिटाइजेशन एक्शन प्लान, और उसकी लिंक यहाँ पे देना है। अब अगर IQAC ने ये प्लान बनाया ही नहीं और वेबसाइट पे डाला ही नहीं तो आप लिंक कहाँ से दोगे, है ना? दैट इज व्हाट आई वाज वांटिंग टू टेल कि ये चीज हमको ध्यान रखनी है। अब मैम सर एक बात आती है कि इसमें हमको इनकी भी लिंक्स देनी है। स्पेशल स्पेसिफिक फैसिलिटीज प्रोवाइडेड फॉर वीमेन इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। वीमेन की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए आपने स्पेशल फैसिलिटीज क्या दी है? क्या हो सकती है वीमेन की फैसिलिटीज, स्पेशल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी? वुड एनीबडी लाइक टू कमेंट कि स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइडेड फॉर वीमेन इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी क्या क्या हो सकती है? एनी कमेंट ऑन दैट? हम ये कह सकते हैं कि सर हमारा जो साइकिल स्टैंड है, हमारा जो पार्किंग एरिया है, वहां पे हमने एक स्पेशल गार्ड रखा है। हाँ, हमने CCTV कैमरास लगाए हुए हैं, हमने सर्वेलेंस रखा है, हमारे प्रॉपर राउंड्स होते हैं स्टाफ के, सिक्योरिटी पर्सनल के, प्रिंसिपल के, डायरेक्टर के। क्रिएशन ऑफ सेल, विमेन सेल। ओके, सो वो चीज है। आप देखिए काउंसलिंग के लिए आपने क्या रखा है, हर कॉलेज में काउंसलिंग होती है, हर कॉलेज में जनरल काउंसलर होता है, या फिर काउंसलर को आप कभी नीड बेसिस पे आप उनको इनवाइट करते हो। फिर कॉमन रूम्स, तो यही जो एक जवाब आया सारिका शर्मा मैम का कि क्रिएशन ऑफ वीमेन सेल, है ना? तो देखिए आप वीमेन सेल अगर क्रिएट कर देते हो तो ये बिल्कुल सही जवाब है कि वीमेन सेल के अम्ब्रेला में फिर ये सारी एक्टिविटीज हो जाती है। मुझे याद है ना कि हमारे यहाँ वीमेन सेल है, हमारे संस्थान में है, उसकी इंचार्ज मैडम जो है वो कभी ना कभी एक फाइल लेके हर दूसरे तीसरे दिन आती है कि हमारे गर्ल्स कॉमन रूम की जो चादरें हैं वो ठीक नहीं है, हमारे पर्दे ठीक नहीं है, हमारा जो सैनिटरी वेंडिंग मशीन है वो सही काम नहीं कर रही है, इंसिनरेटर काम नहीं कर रहा है, या हमारे टैप्स में पानी नहीं आ रहा। एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट थिंग, आई रियली अप्रिशिएट, क्योंकि दैट इज व्हाट इज द एक्चुअल परव्यू ऑफ वीमेन सेल। ओके, तो वीमेन सेल के लिए मतलब आपने ये कौन कौन सी फैसिलिटीज दी है? डे केयर सेंटर फॉर यंग चिल्ड्रन, अगर कोई आपके यहाँ ऐसे बहुत वर्किंग वीमेन आती हैं जिनके यंग बच्चे हों तो आपने उनके लिए कोई डे केयर सेंटर का प्रोविजन कर रखा है, या कोई और अगर आपके पास लगता हो आपने काम किया हो तो उसकी इंफॉर्मेशन की लिंक्स इनको देनी पड़ती है।
तो सर मैम अब आपको एक चीज फील हो रही होगी, क्योंकि मुझे भी होता है कि जब हम इन चीजों को ध्यान से पढ़ते हैं ना तो हमको लगता है कि ओ हाँ यस क्रैश फैसिलिटी, प्रिया मैडम का कहना है, दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट। तो अब हमको पढ़ के ये लग रहा है कि ओ ये चीजें होनी चाहिए, यस ये होनी चाहिए और होती भी है, लेकिन हम इनको वेबसाइट पे शो नहीं करते, हमारे पास इनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, हमारे पास इनका एक फुल प्रूफ रिकॉर्ड नहीं होता, जो कि हमको रखना जरूरी होता है। चलिए अब हम अगले पॉइंट आते हैं 7.1.2। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है QNN, वेरी करेक्ट ऑब्जर्वेशन। अपन यहाँ पे देखते हैं कि QNN पिछले 7.1.1 क्या था, QLM, तो वहां पे तो दैट वाज क्वालिटेटिव मैट्रिक्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ QNN? Thank you, thank you. Anyone would like to comment what is the meaning of QNM? I'm pretty sure. Yes, quantitative, quantitative. Perfect, perfect, perfect. तो QNM का मतलब है now this is a quantitative matrix. Quantitative matrix का मतलब ये है कि अब हमको कुछ यहाँ पे न्यूमरल्स में, फिगर्स में, संख्या में हमको जानकारी देनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, The institution has facilities for alternate sources of energy and energy conservation measures. मतलब क्या आपके पास सोलर एनर्जी का कोई प्लांट है या सोलर एनर्जी की आपके पास चीजें हैं, या फिर वो हमसे ये पूछेंगे कि बायोगैस प्लांट आपके पास है क्या, व्हीलिंग टू द ग्रिड मतलब आप बिजली तैयार करके उसको एमपीडी को वापस देते हो क्या, सेंसर बेस्ड एनर्जी कंजर्वेशन है क्या, एंड यूज ऑफ एलईडी बल्ब्स, पावर इफिशिएंट इक्विपमेंट्स है क्या। अब मैं इसमें चौथे पॉइंट के ऊपर आई वुड रिक्वेस्ट दी फीडबैक चैट्स फ्रॉम यू। ये जो चौथा पॉइंट है सेंसर बेस्ड एनर्जी कंजर्वेशन, इसका क्या मतलब है? वुड एनीबडी लाइक टू कमेंट ऑन दैट? I'm really very happy to see that honorable participants are very frequently posting on chat box and we are discussing. Anybody would like to comment? यस यस यस, गुप्ता सर का बिल्कुल सही जवाब, विशाल गुप्ता सर का बिल्कुल सही जवाब कि सेंसर बेस्ड एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम्स, ऑटो ऑफ लाइट, ऑटो ऑन लाइट। परफेक्ट परफेक्ट, तारिका नांदेड़कर जी का बिल्कुल सही जवाब है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल आया इनकी तरफ से, सेविंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल बल्ब्स दैट ग्लो व्हेन रिक्वायर्ड। परफेक्ट आंसर, ये जो जवाब है ना, बल्ब्स दैट ग्लो व्हेन रिक्वायर्ड। अब अगेन मैं डर के मारे मैं उसको मिस या मिस्टर कॉल नहीं कर पा रहा हूँ, चौधरी जी की तरफ से जवाब है, बट देन दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कि हम हमारे पास ऐसे सेंसर लगे हैं क्या कि जब हमको हम जैसे प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, मान लीजिए हमारे जो कॉरिडोर्स हैं, है ना, हमारे हॉस्टल्स है, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, हमारा कोई भी हॉस्टल है या हमारी कैंटीन है, तो आप देखिए होटल्स में कई जगह होता है, आप कॉरिडोर में दूर से देखेंगे आपको लगेगा कॉरिडोर में अंधेरा है, लेकिन जैसे जैसे आप उसमें चलते जाएंगे प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स के कारण जो हाँ थैंक यू मिस चौधरी, मिस चौधरी थैंक यू सो मच। तो क्या होता है, तो जैसे जैसे आप चलते जाते हो तो वैसे वैसे वहाँ के लाइट जलते जाते हैं, आपने देखा होगा, ये ऊपर बहुत कॉमन सी चीज है प्रॉक्सिमिटी सेंसर या इन सब के कारण। तो ऐसी चीजें आपने लगा के रखी होती हैं। तो देखिए अगर आपके कॉलेज में लगी है तो बधाई, अगर नहीं लगी है तो रिक्वेस्ट कीजिए, ट्राई कीजिए कि ये सेंसर लग जाए, बड़े सस्ते आते हैं और इनकी जो कीमत है ना 6 महीने में ही आपकी वसूल हो जाएगी, कि नहीं तो पता चला दिन भर लाइट जल रही वहां पे कोई जा ही नहीं रहा है, रात भर लाइट जल रही है उसकी जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर आपने सेंसर लगा दिए तो जब कोई वहां पे पहुंचेगा तो लाइट जल जाएगी, नहीं पहुंचेगा तो नहीं जलेगी, आपकी कितनी बिजली की बचत होगी। तो वो यहाँ पे ये पूछते हैं कि आप ये बताइए कि आपके पास ये चारों चीजें यूज होती हैं, चार या इनमें से सारी चीजें, एनी 3 ऑफ द अबव, एनी 2 ऑफ द अबव, एनी 1 ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, और अगर होती हैं तो अपलोड द जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स। जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स देखिए हमको अपलोड करनी पड़ेंगी, जब हम इसका जवाब देंगे तो हमको एसएसआर में नेट की वेबसाइट पे अपलोड करना पड़ेगा जियो टैग्ड फोटोग्राफ। नाउ अगेन देयर इज अ स्मॉल क्वेश्चन विद द ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स, what do we mean by geotagging photograph? How do we make geotagging on the photograph? मतलब जब हम कैमरे से फोटो लेते हैं, जैसे हमने कहीं फोटो ली कि सर यहाँ पे हमारी गूगल मैप फोटोज, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, तारिका जी की तरफ से जवाब है गूगल मैप फोटो वाया एडिंग लोकेशन यूजिंग गूगल मैप्स। गुप्ता सर का बिल्कुल परफेक्ट जवाब,
मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है इस डिस्कशन में कि बहुत दिनों बाद एक ऐसा फोरम मिल रहा है जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स इतने एक्टिवली जवाब दे रहे हैं। डाउनलोड जियो फॉर नोइंग लोकेशन टाइम। तो हम जो फोटो लेते हैं, हमारे फोटो में आपने देखा होगा कई फोटोज आप लोगों को आजकल लोग बाग व्हाट्सएप पे शेयर करते होंगे, जिसके नीचे जियो टैग होता है, उसमें एक लोकेशन का एक वो बना रहता है और उसमें सिंबल बना रहता है और उसमें लिखा रहता है कि उसमें किस जगह पे किस टाइम पे कितने बजे उसका एक लोकेशन रहती है, वहां पे ये फोटो लिया गया है। तो वो ये देखना चाहते हैं कि अगर ये सोलार बायोगैस प्लांट का अगर आपने फोटो अपलोड कर दिया तो ऐसा तो नहीं कि आप भोपाल में और आपने इंदौर के किसी कॉलेज का फोटो अपलोड कर दिया। नो। तो रिस्पेक्टेड मैम सर एक आदत डाल दीजिए कि फोटो जियो टैगिंग जरूर करनी है। जब भी हम फोटो लें तो उसको जियो टैग फोटोग्राफ हम लें, ठीक है। और इनसे रिलेटेड अगर कोई हमको दूसरी इंफॉर्मेशन देनी है तो फिर वो वहां पे हमको देनी पड़ती है। तो ये हमारा 7.1 तो एक चीज याद रखें मैम हम लोग कि सोलर एनर्जी की हार्नेस करने के लिए हम लोग काम करें, बायोगैस प्लांट के ऊपर काम करें, व्हीलिंग टू द ग्रिड के ऊपर काम करें, सेंसर बेस्ड एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करें, एलईडी बल्ब्स लगाएं, पावर इफिशिएंट इक्विपमेंट लें। What is the meaning of power efficient equipment? Would anybody like to comment on that? Power efficient equipment का मतलब क्या होता है? यस सर परफेक्ट। गुप्ता सर का एंड चौधरी मैडम का बिल्कुल परफेक्ट जवाब है, स्टार रेटिंग वाला। मतलब देखिए जब हम लोग फ्रिज लेने जाते हैं अपने घर के लिए तो हम लोग बोलते हैं हमको 3 स्टार रेटिंग चाहिए, 5 स्टार मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप भी जानते हैं कि जब हम स्टार रेटिंग वाले इक्विपमेंट लेने जाते हैं तो वो हमको शुरू में थोड़े महंगे पड़ते हैं, लेकिन बहुत जल्दी उनकी कीमत वसूल हो जाती है ना, क्योंकि उनमें स्टार रेटिंग रहती है। जितने ज्यादा स्टार मतलब उसका एनर्जी कंजम्पशन उतना ही कम होगा, पावर इफिशियंसी उतनी ही ज्यादा होगी। बिल्कुल परफेक्ट जवाब। तो ये था 7.1.2। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट। चलिए 7.1.3 and now that is again qualitative metrics. Qualitative metrics का मतलब क्या होता है? अगेन आई एम रियली मिसिंग माय वीडियो ओवर देयर, क्योंकि मेरा वीडियो भी अगर दिख जाता तो कितना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग सामने सामने बातचीत कर रहे हैं। पता नहीं मेरा वीडियो क्यों नहीं चालू हो रहा है। एंड अगर किसी को लगे कि ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स को कि आपकी तरफ से कोई सजेशन है कि मेरा वीडियो क्यों नहीं चालू हो रहा है तो मुझे बताइएगा, नहीं तो खैर अपनी बात तो चल ही रहेगी। परफेक्टली फाइन। ओके, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजिकली लोग बहुत ज़्यादा है आज की इस ऑडियंस में, वेरी हाईली जो एंट्री लेवल बिहेवियर है बहुत हाई है इस आज के पार्टिसिपेंट्स का। वेरी नाइस। तो चलिए सर मैम 7.1.3 क्वालिटेटिव मैट्रिक्स है। डिस्क्राइब द फैसिलिटीज इन द इंस्टीट्यूशन for the management of the following types of degradable and non-degradable waste within 500 words। मतलब फिर ये क्वालिटेटिव हमको जवाब देना है। इसका जवाब देना है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आप क्या करते हो, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आप क्या करते हो, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या करते हो, ई वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होता है, वेस्ट साइक्लिंग रिसाइकलिंग सिस्टम क्या है, हजार्डस केमिकल्स एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट को आप कैसे मैनेज करते हो। लेकिन इसके लिए आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, एग्रीमेंट लगाने पड़ेंगे, एमओयू विथ, जैसे अगर आपने नगर निगम को लिख रखा है कि हमारे यहाँ से रोज कचरा उठाओ तो लेटर कहाँ है, लेटर कहाँ है। आप अगर उनको नगर निगम का तो उनका आपका पास फाइल होनी चाहिए कि साहब ये हमारी सॉरी ये हमारी पेमेंट की रिसीप्ट्स हैं वगैरह ये सारी चीजें, और उन सारी चीजों की जियो टैग फोटोग्राफ्स आपके पास होनी चाहिए। तो आप ये देखिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तो अपने यहाँ सबके यहाँ होता है भाई, एक ग्रीन वाली बास्केट लगा दी, एक अपन ने ब्लू वाली बास्केट लगा दी, है ना, एक में सूखा कचरा एक में गीला कचरा। ये तो हम लोगों ने सीख लिया है कम से कम। एंड इसके लिए तो मध्य प्रदेश निश्चित रूप से बधाई का पात्र है। स्पेशल क्रेडिट गोज टू इंदौर। ओके, तारिका मैडम का जवाब है यस। मैं एक्चुअली आई डिड मैम, कंप्यूटर कैमरा ऑन है और मुझे यहाँ खुद दिख रहा है, मतलब वो जो मैं अपना देखता हूँ ना तो मुझे अपना कैमरा दिख रहा है। और मैं स्टॉप वीडियो में वीडियो सेटिंग पर भी मैं गया था, कैमरा एक ही दिखा रहा है, यूएसबी 5 मेगापिक्सल कैमरा, ये जो जूम वाला है ना ये दिखा रहा है, इससे तो गड़बड़ नहीं हो रहा है कहीं। और सब सही है। वीजे नहीं, वीजे कैमरा दिखाई नहीं रहा है यहाँ पे, नॉट शोइंग।
एक्चुअली क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं, मैंने कल गूगल पे भी किया, MS टीम पे किया, उसमें हो रहा था, उसमें सब में मेरा वीडियो भी दिख रहा था, केवल यहाँ पे पता नहीं क्या। एनीवे एक आध मिनट में मैं लेता हूँ कि उस वीडियो फिल्टर में, तो बैकग्राउंड फिल्टर में कुछ, वीडियो में कुछ नहीं है। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो चलिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तो हम सभी कर लेते हैं, दैट वी नो, बट अब ये बात आती है कि लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं। तो एनी वुड लाइक टू गिव एन आंसर कि हम लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि आपके हॉस्टल का या आपके लेबोरेटरीज का या आपके डिपार्टमेंट्स का जो वॉश बेसिन का पानी निकल के जाता है, हाँ ETP प्लांट, परफेक्ट, परफेक्ट, ETP प्लांट हो सकता है। तो ETP प्लांट का मैम आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज चैट बॉक्स में लिखिएगा ETP प्लांट का फुल फॉर्म, बिकॉज एवरीबडी इज वाचिंग। ओके, सो द आंसर विल कम। तो देखिए, जो हमारा जो ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, ये सारी चीजें ये संस्थान के लेवल पे की जाती हैं, और वो प्रॉपर मेंटेनेंस करना है कि भाई हमारा यहाँ का पानी निकलता है और यहाँ पे आता है। यस, अफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, मैडम शर्मा ने जवाब भी दिया इसका, परफेक्ट मैम, थैंक यू सो मच। तो वो पानी कहाँ जाता है, उस पानी को हम कैसे मैनेज करते हैं, वेस्ट को हम कैसे निकाल देते हैं, पानी को रिसाइकिल करके हम उसको यूज करते हैं क्या। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल। क्योंकि जैसे मेरे ही संस्थान में केमिस्ट्री लैब है, आप बच्चे केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल तो करते ही हैं, जब प्रैक्टिकल करते हैं वो क्या टाइट्रेशन करते हैं और वो काफी सारी चीजें करते हैं, तो उसमें जो केमिकल बनता है फिर अब उसको कहीं ना कहीं तुमको वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करना है, तो जाके सिंक में डाल देते हैं। तो सिंक से वो केमिकल वेस्ट निकल के कहाँ जा रहा है, दैट इज वेरी एसेंशियल। आप अपने में से कई लोगों ने इस बारे में नहीं सोचा होगा। और अगर कोई बायोमेडिकल वेस्ट है तो ये तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बायोमेडिकल वेस्ट का मतलब ये कि अगर मान लीजिए आपके यहाँ कोई डिस्पेंसरी है, आपके यहाँ कोई फार्मेसी डिपार्टमेंट है, मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, तो वहां तो कई तरह के बायोमेडिकल वेस्ट निकलते हैं। अगर मान लीजिए किसी रोगी की पट्टी ही निकल आ जाती है, उसका जो कॉटन बड वो निकल आता है, या इवन अगर आप अपना की बात करें, तो ये सब चीजें आप कहाँ करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज आती है आजकल, एंड दैट इज ऑन ई वेस्ट मैनेजमेंट। ई वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपके जो पुराने कंप्यूटर्स जिनको आप यूज नहीं कर रहे, जिनको आपने डंप करके रख दिया है, नाउ व्हाट इज दैट, दैट इज ई वेस्ट। आप देखिए, हमारे घर में अगर एक पुराना मोबाइल होता है, हम नया लेके आते हैं, तो हम सीधे किस पे जाते हैं, कैशिफाई पे जाते हैं, या OLX पे जाते हैं, या किसी ऐसी साइट पे जाते हैं जो हमारा मोबाइल खरीद लेगा, पर्पस की कुछ पैसे मिलेंगे और हमारे यहाँ का वेस्ट भी निकल जाएगा। लेकिन हम कॉलेज के वेस्ट के बारे में नहीं सोचते कि हमारे कॉलेज में जितने पुराने कंप्यूटर्स रखे हैं, पुराने प्रिंटर्स रखे हैं, क्योंकि इनका यूज तो होगा नहीं, लेकिन हम उसको राइट ऑफ नहीं कर सकते, हम उसको अपने स्टॉक रजिस्टर से नहीं हटा सकते, वो तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल हो जाएगा। लेकिन उसको मैनेज करने के तरीके आपने देखे होंगे, मतलब आपको पता होगा कि जैसे हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो एक नियम है कि हर साल हम लोग लगभग लगभग कुछ हजार रुपए का जो स्क्रैप है उसको बेच सकते हैं। एक कमेटी बनाते हैं, वो रिकमेंड करती है कि साहब इतना कचरा हमारे यहाँ का बेकार है, इसको आप बेच दें, ये करें वो करें, एंड देन हम उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। फिर एक बात आती है वेस्ट रिसाइकलिंग सिस्टम की, तो ETP प्लांट की जो बात हुई वो वही हमारा रिसाइकलिंग वाली भी बात हो जाती है। और हजार्डस केमिकल्स एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट की बात हमने कर ली है। तो हजार्डस केमिकल्स तो ठीक है, हमारी केमिस्ट्री लैब से हमेशा निकालते रहते हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट आई डोंट थिंक कि शायद हमारे नॉर्मल कॉलेजेस में रेडियो एक्टिव वेस्ट हमको मिलता होगा। इज देयर एनी ऑनरेबल पार्टिसिपेंट हु वुड लाइक टू कमेंट कि क्या हम लोग कहीं रेडियो एक्टिव वेस्ट हमारे कॉलेजेस में निकलता है क्या। क्योंकि मेरे को मेरे कॉलेज में तो याद नहीं आ रहा, मेरे संस्थान में याद नहीं आ रहा। आप में से किसी के यहाँ होता है क्या, मतलब मैं अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ, आई एम नॉट टेस्टिंग एनीवन, कि कहाँ मतलब रेडियो एक्टिव वेस्ट, मतलब हमारे जैसे कॉलेजेस में तो नहीं होता। शायद कुछ होते होंगे फैकल्टीज जहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूज होता होगा, खास करके जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में जहाँ पे कीमो वगैरह होता है वहाँ पे। और आप ये देख सकते हैं कि इवन हमारे फिजिक्स में भी कई जगह जो अपने फिजिक्स के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, उनमें जैसे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेडिएशन,
इन सब के ऊपर ये जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज होता है। तो ये सारी चीजें अगर आपके यहाँ यूज होती हैं तो आपको उनको कैसे मैनेज करना है, इसके बारे में NAAC हमसे पूछता है। 4 नंबर का सेक्शन है ये, और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमको लगाना है, वही सारी चीजें हम लोगों ने कही यहाँ पे। सो दैट वाज अबाउट 7.20। अब देखिए देखते हैं 1.4 क्या है। 1.4 क्या है? नाउ दिस इज अगेन क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स, मतलब अपने को ABCD में या फिगर्स में जवाब देना है कि आपके कॉलेज में वाटर कंजर्वेशन फैसिलिटीज उपलब्ध हैं या नहीं। अब देखिए कौन कौन सी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं कि नहीं आप? रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप सभी समझते हैं कि आजकल तो जितनी भी नई बिल्डिंग्स बनती हैं उसके ऊपर तो एक नियम ही है, इसके बिना तो आपको नगर निगम से परमिशन ही नहीं मिलती कि आपकी जो बिल्डिंग का जो टॉप है उसमें आने वाला सारा पानी आपको बहाना है। मतलब पानी बहाना नहीं है, पानी को आपको मतलब एक बोर में पहुंचाना है, एक पाइप के जरिए आपको बोर में पहुंचाना है। और उसी के लिए दूसरा पॉइंट देखिए, बोरवेल या ओपन वेल रिचार्ज, मतलब आप ऊपर के जो बारिश का पानी जो आपके रूफ पे आता है या उसको आप पाइप्स के थ्रू अपने किसी बोरवेल में आप उसको रिचार्ज करने के लिए यूज करते हैं कि नहीं। आपने कंस्ट्रक्शन ऑफ छोटे छोटे आपने तालाब या बंड्स जिनको बोलते हैं वो आपने बनाए हैं कि नहीं। वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग आप करते हो कि नहीं, मतलब पानी को आप बचाते हो कि नहीं बचाते हो। मेंटेनेंस ऑफ वाटर बॉडीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन द कैंपस, मतलब कैसे आपके यहाँ पानी कहाँ स्टोर किया जाता है, कैसे उसको पूरे कैंपस में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ये सारी चीजें इसके ऊपर आती हैं। अब देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक्स एंड बंड्स, थर्ड पॉइंट जो है, कौन कौन से आप में से कोई पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं क्या जिनके कॉलेज में, जिनके प्रेमाइसेस में आपको लगता है कि छोटे छोटे ऐसे तालाब या ऐसे पानी की अपन ने जो वाटर बॉडीज रहती हैं अपन बना रखी हैं। इज देयर एनी वन ऑफ द इंस्टीट्यूट जहां आपको आपके कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में कहीं पे है क्या आपके इंस्टीट्यूट में कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक्स एंड बंड्स? क्योंकि देखिए ऑप्शंस में वो हमसे पूछता है कि आपके यहाँ क्या क्या है, एनी फोर और ऑल ऑफ दी अबव। देखिए यहाँ पे NAAC हमको एक ऑप्शन तो देता है कि अगर आप एनी फोर भी कह दोगे तो भी वो आपका ए ऑप्शन मान लेगा। अगर किसी का 5 होता है तो ऑफकोर्स वेरी नाइस, पर वो मेरे को डाउट लगता है कि कम ही कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज ऐसी मिलती हैं जिनके अपने प्रेमाइसेस में तालाब होता है। वैसे होता है कई जगह जहाँ पे फिशरीज पे काम होता है या जहाँ पे ये अपना सिंघाड़े वगैरह उगाते हैं कुछ लोग छोटे छोटे कमल बनाने के लिए वाटर पॉन्ड बना के रखते हैं, है ना। तो ये चीजें हमसे पूछते हैं और प्रूफ करने के लिए हमको फिर जियो टैग फोटोग्राफ्स, वीडियोज ऑफ द फैसिलिटीज, ये सारी चीजें हमको देनी पड़ेगी। जो अगला क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स है ग्रीन कैंपस इनिशिएटिव्स इंक्लूड, 4 नंबर का है कि द इंस्टीट्यूशनल इनिशिएटिव फॉर ग्रीनिंग द कैंपस आर एज फॉलोज। मतलब रिस्ट्रिक्टेड, क्या आपके यहाँ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ मोबाइल्स है, यूज ऑफ बाइसिकल्स या बैटरी पावर्ड व्हीकल्स आप प्रमोट करते हो क्या, पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली पाथवेज है कि नहीं, बैन ऑन यूज ऑफ प्लास्टिक है कि नहीं, लैंडस्केपिंग विद ट्रीज एंड प्लांट्स आप लोग करते हो कि नहीं करते हो। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप ये देखिए कि आपके यहाँ मतलब ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप इंस्टीट्यूट के अंदर साइकिल्स का या बैटरी पावर्ड व्हीकल्स को आप प्रमोट करते हो। आप में से यहाँ जो जो पार्टिसिपेंट सुन रहे हैं, इज देयर एनी वन ऑफ देम जो इस पे कहना चाहेंगे कि आपके यहाँ ऐसा होता है? हाँ, या आप में से कोई ऐसा है क्या कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपके कैंपस के अंदर साइकिल्स प्रमोट करते हो? मतलब मैनेजमेंट ने खुद कुछ साइकिल्स खरीद के रख दी हो या बच्चों को बोलते हो कि वे अपनी मोटर बाइक बाहर खड़ी करो लेकिन कैंपस साइकिल से चलो, ऐसे कुछ है क्या कैंपस? एनी वन ऑफ अस? मेरे यहाँ नहीं है, ऑफ कोर्स आई विल एडमिट, मेरे यहाँ नहीं है, IEHE भोपाल में नहीं है। लेकिन मुझे ही याद आता है क्योंकि जैसे मेरा बेटा जब वो अपना ओके, खरे साहब ने बोला, संजीव खरे साहब ने कि यस उनके यहाँ पे है, तो सर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई कि आपके यहाँ है, सभी के यहाँ होना चाहिए। जैसे मेरा बेटा जब NDA कर रहा था, तो काफी पुरानी बात है, जब वो NDA कर रहा था तो उनके यहाँ हर जेंटलमैन कैडेट को साइकिल इशू होती है और पूरे उनको एकेडमी के अंदर केवल साइकिल से ही चलना रहता, मोटर बाइक तो भूल जाइए, जब तक आप ऑफिसर नहीं बन जाते मोटर बाइक तो भूल जाइए। तो दैट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस और ये हम सभी को करनी चाहिए। बहरहाल मेरे यहाँ नहीं है, मैं भी कोशिश करूंगा इसको लगाने की। तो ये एक था
अगला जो क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स है कि क्वालिटी ऑडिट्स ऑन एनवायरनमेंट एंड एनर्जी आर रेगुलरली अंडरटेकन बाय द इंस्टीट्यूशन। मतलब क्वालिटी ऑडिट्स मतलब एनवायरमेंटल ऑडिट में जिसको अपन बोलते हैं कि जैसे ग्रीन ऑडिट है, एनवायरमेंटल ऑडिट है, एनर्जी ऑडिट है, तो क्या आप लोग ये कराते हैं कि नहीं कराते? यहाँ तो एनर्जी ऑडिट कराते हैं, इसलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे सकता हूँ। आप में से कोई क्या मुझे ये बताएगा कि अगर आपको अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एनर्जी ऑडिट कराना हो तो आप किससे करा सकते हो? एनी वन ऑफ यू, क्या किसी को कोई आइडिया है इसके बारे में? आप एनर्जी ऑडिट अपने कॉलेज का किससे करा सकते हो? कोई किसी को कोई जवाब? ओके, मैं बताता हूँ। देखिए, मैं अपने आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे राज्य ऊर्जा विकास निगम है ना, जिसका हेड ऑफिस भोपाल में ही है। आप राज्य ऊर्जा विकास निगम को अगर चिट्ठी लिखते हो तो उनके पास कुछ एमपैनल्ड एजेंसीज रहती हैं, वो आपको गवर्नमेंट रेट पे एनर्जी ऑडिट करा के आपको सर्टिफिकेट देती है और आपको एक डिटेल रिपोर्ट देती है कि आपके यहाँ बिजली का कंजम्पशन इतना है, आपके इलेक्ट्रिक पॉइंट्स इतने हैं, इसमें इतने पॉइंट्स आपके यूजलेस हैं, ये इतने पॉइंट्स को आपको कम करना चाहिए, या आपको यहाँ यहाँ पे सेंसर लगाने की जरूरत है, यहाँ से आपकी एनर्जी लीकेज ज्यादा है। ये सारी चीजें वो हमको बताते हैं और उनकी रिपोर्ट से हमको बहुत फायदा हुआ। हमने 3 साल पहले भी इनसे एनर्जी ऑडिट कराया था। इस साल फिर हम करा रहे हैं, हम लोगों ने उनको पैसा दे भी दिया है, बस उनकी टीम आनी है और करने वाली है। एक और तरीका है, जो डीएवीवी इंदौर है, जो डीएवीवी इंदौर है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, ये तो पक्का करते हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय वालों ने अपने विश्वविद्यालय में एक ऐसा फैसिलिटी डेवलप कर ली है और दूसरे लोग उनको कुछ एक उनका नॉमिनल पेमेंट है वो करते हैं, तो वो अपना करके देते हैं एनर्जी ऑडिट। चौधरी मैम का फिर एक अच्छा जवाब आया कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी, तो ये मैडम मुझे लगता है एनवायरमेंट या ग्रीन ऑडिट करके देंगे, मतलब आई एम नॉट श्योर, अपन तो डिस्कस कर रहे हैं। पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से हम ऑफ कोर्स एनवायरमेंट ऑडिट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ग्रीन ऑडिट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमसे पूछते हैं। फिर हमसे ये पूछते हैं कि क्या आपके कैंपस को क्लीन एंड ग्रीन कैंपस का कोई रिकॉग्निशन या अवार्ड मिला, या बियॉन्ड द कैंपस एनवायरमेंटल प्रमोशनल एक्टिविटीज आप क्या करते हो? तो आप अपने एनएसएस के जरिए आसपास के इलाके में नो प्लास्टिक जोन के लिए आप प्रमोट कर सकते हो, लेकिन शर्त ये रहेगी कि पहले अपने कॉलेज को खुद को नो प्लास्टिक जोन आप बना लेना, नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि दिया तले अंधेरा हो जाए, है ना। तो ये सारी चीजें, फिर उनका वही क्वांटिटेटिव जवाब है कि आप बताइए कि आप 4 करते हो कि 3 करते हो कि 2 करते हो कि 1 करते हो, और फिर वो ये बोलते हैं कि अपलोड द रिपोर्ट्स ऑन एनवायरनमेंट एंड एनर्जी ऑडिट सबमिटेड बाय द ऑडिटिंग एजेंसी। तो केवल हाँ हम कराते हैं कहने से काम नहीं चलेगा, है ना। तो आपने उनको जो लेटर दिया उसका आपको अपलोड करना चाहिए, उनकी जो रिपोर्ट मिली वो अपलोड करना चाहिए, अगर उन्होंने कोई सर्टिफिकेशन इशूड किया है वो अपलोड करें। हाँ, एंड कोई अगर आपको ऐसा एनवायरमेंट के ऊपर या एनर्जी के ऊपर कोई अवार्ड मिला है तो वो आप अपलोड करें। तो अगर आपके संस्थान को, कॉलेज को अवार्ड मिला है तो अच्छी बात है, नहीं मिला है तो अवार्ड लेने की कोशिश कीजिए। हम लोग भी कर रहे हैं कि भाई हम सबको बताएं कि देखिए हमारे यहाँ प्लास्टिक फ्री जोन है, कोई हमको अवार्ड दे दे, हमको बड़ा अच्छा लगेगा, फिर हम भी किसी को अवार्ड दे देंगे। एनीवे, दैट वाज ऑन द लाइटर नोट, बट देन ओके, यहाँ पे या थैंक यू सो मच। दीप्ति कौशिक मैडम का एक मैसेज आया, मुझे मुझे पढ़ के बहुत, मैम वील टॉक अगेन। बट चलिए, जैसे अब हम 7.1.8 देखते हैं। नाउ दिस इज द क्वालिटेटिव मैट्रिक्स। क्वालिटेटिव मैट्रिक्स जो है इसमें ये पूछते हैं, डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स इनिशिएटिव्स इन प्रोवाइडिंग एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, टॉलरेंस एंड हार्मनी, cultural, regional, linguistic, communal, socio-economic and other cities, है ना। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लेट मी टेल यू, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। स्पेशली आई वुड लाइक टू कि क्या आपके कॉलेज में या आपकी यूनिवर्सिटी में कोई ऐसी पहल की जाती है या कोई विशेष प्रयास किए जाते हैं जिससे सबको इंक्लूसिव एनवायरनमेंट मिले, सब एक दूसरे को टॉलरेट कर रहे हो, चाहे वो टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ का टॉलरेंस हो, टीचर स्टूडेंट का टॉलरेंस हो, इंटर रिलीजियस टॉलरेंस हो, कल्चरल, मतलब कई बार ये होता है कि कुछ अर्बन जोन के विद्यार्थी रहते हैं, कुछ रूरल एरिया के विद्यार्थी रहते हैं, इनके बीच में आपस में नहीं बनती, कुछ लोग भाषा के आधार पर एक दूसरे से बटे रहते हैं। तो इन सभी को जोड़ने के लिए आपने, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए आपने क्या किया है, बताना पड़ेगा। तो इसमें आपको ये भी बताना पड़ेगा कि
मतलब आपने जैसे अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमिक एक्टिविटीज ऑफ द इंस्टीट्यूशन में बताया होगा कि हमारे पास रूरल एरिया के इतने हैं, हमारे पास दूसरे स्टेट्स के इतने हैं, हमारे पास दूसरे कंट्री के इतने हैं, है ना, ऐसा पूछा जाता है हमारे कहीं ना कहीं। तो वहां तो आपने बड़े एंथुसियाज्म से बता दिया कि साहब दूसरे स्टेट के हमारे पास तो 40% विद्यार्थी आते हैं। तो वो दूसरे स्टेट के विद्यार्थी और आपके स्टेट के विद्यार्थी एक दूसरे के साथ इंक्लूसिव रहे, इसके लिए आपने क्या स्पेशल प्रयास किए? सर मैम, कई बार तो इंस्टीट्यूट को पता ही नहीं होता कि हमें कोई ऐसा प्रयास भी करना है, जबकि अगर आप उनके ग्राउंड पे उतर के देखो तो उनके आपस में काफी डिफरेंसेस आपको मिल सकते हैं कि नहीं साहब ये तो रूरल एरिया का है, इनका तो लैंग्वेज ऐसी है, तो इनका तो भाषा ऐसी है, कोई बोलेगा साहब वो तो कुछ जरूरत ही से ज्यादा हाई फाई घर का है। तो ये मतलब ये इंक्लूसिवनेस बनाने के लिए आपने क्या किया है वो हमसे पूछते हैं, एंड दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिस्पेक्टेड टीचर्स। ये आप ध्यान रखिएगा, आप शायद समझ रहे होंगे कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ। इंटर रिलीजियस हार्मनी, इंटर कल्चरल हार्मनी अगर हमने प्रमोट नहीं की तो हम कहीं ना कहीं एज टीचर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में फेल होंगे। वेल, अगला पॉइंट जो है फिर से यहाँ पे दैट इज क्वालिटेटिव sensitization of students and employees of the institution to the constitutional obligations, values, rights, duties and responsibilities of citizens। देखिए फिर वही बात आ गई है कि हम अपने स्टूडेंट्स को और एम्प्लॉइज को सेंसिटाइज कैसे करते हैं, हम उनको कैसे बताते हैं कि देखो आपको अपने भारत के संविधान को, हमारे संस्था के संविधान को, या यूनिवर्सिटी के नियमों को, या कॉलेज के नियमों को आपको उनको पता भी तो हो कि भाई कॉलेज के नियम क्या क्या है, उनको पता भी तो हो कि यहाँ के हमारी जिम्मेदारी है, हमारी हम कौन सी सेवा के लिए और उसमें हमको क्या क्या करना पड़ता है, ये सारी चीजें हमको बतानी पड़ती हैं। तो इसमें हमको सेंसिटाइजेशन सेशंस स्पेशली चलाने चाहिए। जैसे हमारे यहाँ ये होता है, मैं प्रिंसिपल के नाते मैं क्या करता हूँ कि मैं लगभग हर 15 दिन में ऐसा मैंने एक रूटीन सा बना लिया कि उसका एजेंडा निकालता हूँ, उनसे मैं यही बात करता हूँ कि भाई टू डिस्कस on their performance in last 15 days, the problems by them, the suggestions by them and the special actions which we need to take on the basis of last 15 days experiences। ये मैं करता हूँ, ये आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो एक रिकॉर्ड हो जाता है हमारा कि साहब हमने सेंसिटाइजेशन यहाँ पे एक स्पेशल एक्टिविटी की है। वेल, तो ये हो गए हमारा 7.1.9। अब देखिए कहता है, देखिए पहला की इंडिकेटर बहुत लंबा है हमारा, फिर 5 पॉइंट्स आ गए। अब ये क्वांटिटेटिव है। द फॉर स्टूडेंट्स, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स कंडक्ट्स पीरियोडिक प्रोग्राम्स इन दिस रिगार्ड। तो मतलब आपके पास कोई प्रिस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट है कि स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, अदर स्टाफ के लिए? तो पक्का होगा मैम, पक्का होगा सर। आप देखिए कि आपका जो प्रोस्पेक्टस रहता है कॉलेज का, उसमें आप स्टूडेंट्स का कोड ऑफ कंडक्ट तो बहुत बोल्ड करके और अंडरलाइन करके कलरफुल वे में अपन लोग लिख देते हैं, लेकिन डू वी हैव एनी कोड ऑफ कंडक्ट फॉर टीचर्स? एडमिनिस्ट्रेटर्स का भी होगा, क्योंकि आपके यहाँ के जो बाईलॉज होंगे, आपके यहाँ के जो जनभागीदारी के नियम होंगे, या आपके यहाँ के जो स्टैट्यूट होगा, वो इन सब एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए होगा, लेकिन टीचर्स के लिए कोई रिटन कोड ऑफ कंडक्ट है कि नहीं? तो आज हमारे बीच जो भी ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं, कि आप में से कोई बताएगा कि क्या आपके कॉलेज या संस्थान में कोई रिटर्न कोड ऑफ कंडक्ट है क्या टीचर्स के लिए? इज देयर एनीवन आप में से कोई? क्योंकि अगर होगा तो हम बाकी के लोग भी उनसे डिस्कस करेंगे कि आपने कैसे बनाया। या वेरी ऑनेस्ट आंसर बाय चौधरी मैम कि नहीं है, मेरे यहाँ भी नहीं है। मतलब मैं सबसे पहले मैं बता दूं, मेरे यहाँ नहीं है। जानते सब लोग हैं कि भाई ऐसा ऐसा करना चाहिए, ऐसे ऐसे। शोभा प्रजापति मैडम ने हैंड रेस किया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑर्गेनाइजर से कि शोभा प्रजापति मैडम को जरा अनम्यूट कीजिए ना प्लीज। हाँ, मंजू रॉय मैडम का भी बिल्कुल सही जवाब है कि शोभा प्रजापति मैडम को अनम्यूट कर सकते हैं क्या? ऑर्गेनाइजर्स से मैं पूछूंगा। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग यही बात कर लेते हैं। तो देखिए कितना ऑनेस्ट आंसर दे रहे हैं सभी लोग। मंजू रॉय मैडम भी बोल रही है कि देयर माइट बी बट नो रिटर्न कोड ऑफ कंडक्ट। ये मेरी स्थिति है, देखिए मेरे संस्थान की भी यही स्थिति। हम लोगों को पता है कि भाई समय पे आना चाहिए, समय पे जाना चाहिए। हाँ, हम लोगों को हमें ये पता है कि
साहब पुरुषों को महिलाओं से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, या किसी तरह के ऐसे कमेंट्स नहीं करने चाहिए, हाँ, या बच्चों को लाइब्रेरी में आते हैं फुटफॉल बढ़ाने के लिए करना चाहिए, बट देयर इज नथिंग इन रिटर्न। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की हमारी इस डिस्कशन के बाद, मतलब मैंने आज के इस सेशन से मैंने जो सीखा, सबसे पहला ये कि मैं कल ही इसके ऊपर में कार्रवाई शुरू करूंगा कि कोई कोड ऑफ कंडक्ट रिटर्न हमारा बन जाए। चौधरी मैडम का सही है कि बट सम इंस्टीट्यूशंस हैव डूज एंड डोंट्स, ये तो सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम आप। हमारे यहाँ भी जैसे केमिस्ट्री लैब है तो हमने वहां पे डूज एंड डोंट्स लगा रखे हैं, हमने ऑफिसेज में भी डूज एंड डोंट्स लगा रखे हैं, लेकिन एक जनरल कोड ऑफ कंडक्ट हम बनाएं और उसको हम वेबसाइट पे डाल दें। क्योंकि देखिए हाँ, दुबे मैडम का भी कहना सही है। देखिए यहाँ पे अपलोड क्या करना है, कोड ऑफ एथिक्स पॉलिसी डॉक्यूमेंट, परफेक्ट, कोड ऑफ एथिक्स पॉलिसी डॉक्यूमेंट, मतलब आपको ऐसा एक डॉक्यूमेंट बना के उसको अपलोड करना है नैक की वेबसाइट पे एसएसआर जमा करते समय। तो केवल हाँ हम फॉलो करते हैं कहने से काम नहीं चलेगा। तो मैंने तो निर्णय ले लिया आज की इस मीटिंग के बाद कि मैं देखूंगा, लोगों से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपने यहाँ इसको बनवाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए ये बात हो गई। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट, और ये इसका लास्ट है ना, अगला जो है इसका लास्ट, अपन अगले की इंडिकेटर पे लेंगे। ये क्वालिटेटिव है कि इंस्टीट्यूशन सेलिब्रेट्स ऑर्गेनाइजेस नेशनल एंड इंटरनेशनल कोममेमोरेटिव डेज, इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स। ओके, सांगले सर का बिल्कुल परफेक्ट जवाब, स्टैट्यूट नंबर 13। मैं कह रहा था कि देखिए स्टैट्यूट चीजें होती हैं, और मैं सारे पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि यूनिवर्सिटीज के जो ऑर्डिनेंस स्टैट्यूट होते हैं उसमें नंबर 13 को देखिए, क्योंकि सांगले सर का जवाब है, तो मतलब इट इज वन, दिस इज द आंसर फ्रॉम वन ऑफ द एक्सपर्ट्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो जो अब अगला क्वेश्चन जो है वो ये पूछ रहे हैं कि क्या आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी ऐसे अलग अलग नेशनल और इंटरनेशनल डेज को सेलिब्रेट करते हैं क्या? तो ये तो करते हैं, देखिए हम भी करते हैं। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले इंटरनेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेट किया होगा, फिर हम लोगों ने वो 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया, हम लोग एड्स अवेयरनेस डे, रेड रिबन डे, मतलब ये ऐसी काफी सारी चीजें करते हैं, तो ये हम लोग करते हैं। अब देखिए एक बहुत अच्छा जवाब आया कि देयर शुड बी अ सेपरेट कोड ऑफ कंडक्ट फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टूडेंट्स। परफेक्ट, दैट इज व्हाट आई मीन टू से, कि देखिए बिल्कुल सही, बिल्कुल कितना अच्छा ऑब्जर्वेशन है कि टीचर्स के लिए एक अलग कोड ऑफ कंडक्ट हो, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अलग कोड ऑफ कंडक्ट हो, क्योंकि दोनों का जो नेचर ऑफ ड्यूटीज है, जो ड्यूटीज वो रेंडर करते हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। परफेक्टली एग्री विद दैट, परफेक्टली एग्री विद दैट। ओके, और ये जो सामने क्वेश्चन दिख रहा है कि हमको कौन कौन से डेज हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो हाँ करते हैं, लेकिन अब देखिए हमको वेब लिंक्स किसके लिए देना है? एनुअल रिपोर्ट ऑफ द सेलिब्रेशंस, मतलब कौन कौन सी चीजें आपने सेलिब्रेशंस की, उनका आपको एनुअल रिपोर्ट बनानी है, अपने वेबसाइट पे अपलोड करना है, और नेट को उसकी लिंक देनी है 5 साल की। जियो टैग फोटोग्राफ्स ऑफ द सम ऑफ द इवेंट्स एंड एनी अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो रिस्पेक्टेड सर मैम, आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, जो कि चूंकि मुझे आ रही है समझ में, कि हम लोग करते बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग रिकॉर्ड रखने के मामले में बड़े पुअर हैं। मतलब ये मैं तो अपने बारे में एडमिट करूंगा कि अभी मुझे याद आ रहा है कि जैसे मान लीजिए हमने अभी कुछ दिन पहले 8 तारीख को शायद हमने ये सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल वीमेंस डे, और 28 फरवरी को हमने सेलिब्रेट किया साइंस डे। तो हमने फोटोग्राफ लिए होंगे, लेकिन हमने जियो टैग फोटोग्राफ्स लिए कि नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट बात रहती है जियो टैगिंग वाली। तो आज इसको भी नोट कर लीजिए, मतलब दिमाग में बिठा लीजिए कि तुरंत इस सेशन के बाद गूगल करिए कि जियो टैगिंग फोटोग्राफ कैसे लिए जाते हैं, और उनको लेने की प्रैक्टिस करिए। 1-2 मिनट में, आप लोग तो बड़े टेक्नोलॉजी पहले एडवांस लोग हैं, आप लोग 2 मिनट में सीख जाएंगे कि वो कैसे लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग आते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। यस, परफेक्ट, प्रॉब्लम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। आई परफेक्टली एग्री विथ यू सर। मैं भी गवर्नमेंट, आई बिलीव आई एम टॉकिंग टू सर नारी शेट्टी भरत। ओके, इफ आई एम रॉन्ग सर प्लीज करेक्ट मी। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है, हमारा भी गवर्नमेंट कॉलेज है, हम लोग भी बहुत कुछ करते हैं। एक्चुअली देखिए गवर्नमेंट कॉलेज में तो क्या होता है, यूनिवर्सिटीज में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में एक ऊपर से सर्कुलर आ जाता है, और जैसे ही सर्कुलर आता है पूरा का पूरा नीचे का गवर्नमेंट स्टाफ है ना, वो अलाइन हो जाता है कि हाँ साहब अब तो हमको ये करना है। हम कर भी लेते हैं, वो एक तरह से हमारी ड्यूटी हो जाती है, मतलब वो एक सेंसिटाइजेशन तो कम होता है, ड्यूटीज हो जाती है, हम उसका रिकॉर्ड नहीं रखते, लेकिन अब हमको वो रखना है, ये हमको ध्यान रखना है। अब देखिए की इंडिकेटर 7.2 बेस्ट प्रैक्टिसेस 30।
इसमें एक ही क्वेश्चन है यहाँ पे, डिस्क्राइब 2 बेस्ट प्रैक्टिसेस सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड बाय द इंस्टीट्यूशन एज पर नेट फॉर्मेट प्रोवाइडेड इन द मैनुअल। मतलब आपको अपने कॉलेज की 2 बेस्ट प्रैक्टिसेस को आपको शॉर्टलिस्ट करना है, आपको पकड़ना है कि आपके कॉलेज की 2 में जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, और इस पे पूरे 30 नंबर है, तो आपको अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट पे भी शो करनी है, और कोई रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो भी शो करनी है, और इनका हम लोग देखते हैं फॉर्मेट कैसा है। तो इनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को शो करने का फॉर्मेट है, जैसे आपने कोई बेस्ट प्रैक्टिस पिक की, अब उसकी टाइटल ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, प्रैक्टिस क्या है एक्चुअली, एविडेंस ऑफ सक्सेस क्या है, प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड क्या क्या है, और इसके बारे में कोई ऑप्शनल नोट्स हो तो वो हमको बताने होते हैं। ओके, best practices, 2 best practices from our institute. So any one of you respected ma'am या respected sir would like to share कि आपके कॉलेज में आपके संस्थान की 2 बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं? एनी वन ऑफ यू। मैं भी शेयर करूंगा, मैंने तो अभी स्लाइड में ही डाल के रखा है। एनी वन ऑफ यू, मतलब होंगी बहुत सारी आपके कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में काफी सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी, पर अगर आपसे पूछा जाए कि 2, इनमें से 2 बेस्ट कौन सी हैं आप बताइए, जिनका जवाब आप ये पूरे 7 पॉइंट पे दे सकते हैं। इज देयर एनी? पक्का होंगी? पक्का होंगी? अगर होंगी तो चैट बॉक्स में लिखिएगा, है ना। चलिए हम लोग अगले स्लाइड में आते हैं। अब 7.3 है, उसमें ये बोल रहे हैं कि पोर्ट्रे द परफॉर्मेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मतलब जो कि आपको डिस्टिंक्टिव बनाता हो, to which makes your institution distinctive to its priority and trust within 1000 words। मतलब जो आपके कॉलेज को, आपकी यूनिवर्सिटी को बाकी दूसरे इंस्टीट्यूट से अलग बनाता हो, ऐसा आपको क्या लगता है? इसमें 20 नंबर है पूरे। ओके, अब देखिए यहाँ एक जवाब आया बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए, सोप पिट है सर के कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में सोप पिट है, यूनिवर्सिटी जो भी हो, कलेक्शन ऑफ क्लोथ्स फॉर ऑर्फन्स, वो ये सारी चीजें करते हैं, ये इनके यहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस है। सो दैट इज वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है सर, हम सभी लोगों को इससे सीखना चाहिए, हम सभी लोग इस चीज को नोट कर लें कि ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। ओके, और आगे हम लोग देखते हैं। अब जैसे हम लोग देखिए मध्य प्रदेश में देयर इज वन A+ ग्रेडेड कॉलेज, है ना, मध्य प्रदेश में A+ ग्रेडेड कॉलेज है, जिसको कि गवर्नमेंट माधव साइंस कॉलेज उज्जैन, आप लोगों ने नाम सुना होगा। उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? देखिए यहाँ पे पारुल माहेश्वरी जी का एक जवाब आया कि इन बीएड प्रोग्राम डिस्प्ले ऑफ इंटरनल एग्जामिनेशन आंसर शीट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस। ये एक इनका बड़ा अच्छा जवाब है कि इनके यहाँ जो बीएड प्रोग्राम में जो इंटरनल एग्जाम होता है उसके आंसर शीट को डिस्प्ले करते हैं, और फिर नेचुरली उसके ऊपर फिर डिस्कशन भी होता होगा कि यहाँ नंबर क्यों काट लिए, यहाँ नंबर क्यों दे दिए। वंडरफुल वंडरफुल, कमेंडेबल, मतलब सबके लिए अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस है। तो बात हो रही थी माधव साइंस कॉलेज की, वेरी गुड, यास्मीन शर्मा मैडम के यहाँ तो एज बर्थिंग सेंटर, आई एम सॉरी, मतलब मुझे एकदम से दिमाग में क्लिक नहीं हो रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बर्थिंग सेंटर? जरा 1-2 लाइन में लिखेंगे क्या मैम? आपके इंस्टीट्यूट में बर्थिंग सेंटर है तो व्हाट, वो क्या काम करता है? मतलब आएगा, शायद जवाब आएगा, मैम सोच के लिखेंगे अभी उसके बारे में। तो माधव साइंस कॉलेज उज्जैन जो है, इनकी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि सोसाइटी कनेक्ट प्रोग्राम्स इनके पास बहुत सारे हैं, विद द हेल्प ऑफ एनसीसी, एनएसएस, रेड रिबन क्लब एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेल, और बहुत सारी चीजों से। स्वच्छता पखवाड़ा माधव साइंस कॉलेज उज्जैन में मनाया जाता है। ओपन में जो ये ओडीएफ कैंपेन है वो उनके यहाँ बहुत अच्छा चलता है, रन फॉर यूनिटी करते हैं, लिटरेसी प्रोग्राम्स चलाते हैं, एंड वेरियस अवेयरनेस प्रोग्राम्स इनके यहाँ चलते हैं। ये गवर्नमेंट माधव साइंस कॉलेज की बेस्ट प्रैक्टिसेस इन्होंने रिपोर्ट की हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस देखने में बड़ी कॉमन लग रही हैं, लेकिन इनका पूरा हमारे पास क्या होना चाहिए? पूरा हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, पूरा हमारे पास सिस्टमेटिक इसका रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, अभी अपन देखते हैं जो भोपाल में करियर कॉलेज है, तो भोपाल के करियर कॉलेज की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? उनकी है जैसे ऑनलाइन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है ना, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। और उनकी एक है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, मतलब वो उनकी जो रिसोर्सेज है उनकी प्लानिंग बड़े अच्छे से करते हैं, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ से एक जवाब यास्मीन शर्मा मैडम के पहले भी एक आया
मंजू रॉय मैडम का एक जवाब है, मैं पढ़ता हूँ सबके लिए, कि आवर कॉलेज हैज have agricultural programs run in collaboration with farmers. I must clap. Actually, I am clapping. You cannot see, but I am clapping really here. कि you are having agricultural program run in collaboration with farmers. मतलब commendable. Salute. Hats off to you. एक्चुअली अगर आपका कॉलेज, आपका संस्थान फार्मर्स के साथ जुड़ के कुछ कर रहा है, तो मुझे लगता है कि हम सभी को इसके बारे में वी मस्ट क्लैप फॉर मैडम। ठीक है, नहीं सुन पाएंगे एक दूसरे को, लेकिन हम लोग फील तो कर ही सकते हैं। यास्मीन शर्मा मैडम ने लिखा कि मैटरनल एंड चाइल्ड केयर एंटीनेटल काउंसलिंग डिलीवरी ऑफ चाइल्ड मैटरनिटी केयर। हाँ, वही मुझे लगा ना, एक्चुअली इसलिए मुझे नहीं पता था। देखिए, आई एम सॉरी, बिकॉज ma'am belongs to a nursing institute. Wonderful, wonderful, wonderful. Maternal and child care antenatal counseling delivery of child maternity care center. Very very nice. इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज मैं सीखा ये बात, मैंने सीखी ये बात। थैंक यू मैम शर्मा, थैंक यू सो मच। अब देखिए, जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर का है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इट इज एन A+ यूनिवर्सिटी। यू नो, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय जो है इंदौर का, ये यूनिवर्सिटी है, इनको A+ ग्रेड मिला हुआ है। वेल, एक चीज मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा, आप लोगों ने रूसा ग्रांट के बारे में सुना होगा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रूसा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो रूसा जो है वो ऐसी यूनिवर्सिटीज जिनका ग्रेड A+ आता है, उनको कुछ ग्रांट देता है। क्या किसी को आइडिया है कि A+ यूनिवर्सिटीज को रूसा कितनी ग्रांट देता है या दे सकता है? एनी वन ऑफ यू, किसी को आइडिया हो तो लिखिए ना जरा चैट बॉक्स में। नहीं? ओके, मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली पहले रूसा का OSD रह चुका ना, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश में हायर एजुकेशन में, इसलिए मुझे पता है कि जिस यूनिवर्सिटी का A+ ग्रेड है उसको रूसा से 100 करोड़ रुपए की ग्रांट मिल सकती है। यस, सही सुना आपने, 100 करोड़ रुपीस ग्रांट कैन बी गिवन बाय रूसा फॉर द A+ ग्रेडेड यूनिवर्सिटी। तो सोचिए, ये जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय जो A+ ग्रेड लेके आया अपनी मेहनतों से, अब उनको कितनी ग्रांट मिल सकती है? 100 करोड़ रुपए। और अगर वाकई उनको ग्रांट मिल गई तो निश्चित रूप से वो उसमें इतना काम कर पाएंगे कि जब अगली बार नैक होगा तो उनका A++ ग्रेड आएगा। एंड आई विश फॉर दैट, आई प्रे फॉर दैट, आई थिंक वी ऑल मस्ट प्रे फॉर दैट। तो ऐसे क्वालिटी अट्रैक्ट्स क्वालिटी, है ना। ये मोर देन 5 स्कोर, ओके लीव इट, क्योंकि नैक का जो CGPA है वो मैक्सिमम 4 होता है। ये सर ने कोई दूसरा ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से सोचा होगा, बट एनीवे। तो जो DAVV को अगर मान लीजिए 100 करोड़ की ग्रांट मिलती, तो सोचिए कितनी बड़ी बात होगी। अब देखिए, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? वीमेन फर्स्ट प्रोग्राम ये चलाते हैं, मतलब इनका एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इनकी यूनिवर्सिटी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, वीमेन फर्स्ट प्रोग्राम वो चलाते हैं। दूसरी इनकी बेस्ट प्रैक्टिस है एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी इन इवैल्यूएशन। तो अभी ट्रांसपेरेंसी इन इवैल्यूएशन की तो बात अभी भी की ट्रांसपेरेंसी इन इवैल्यूएशन की बात की पारुल माहेश्वरी मैडम ने, कि B.Ed प्रोग्राम में डिस्प्ले ऑफ इंटरनल एग्जामिनेशन आंसर शीट्स दिखाते हैं। वही चीज मतलब इनके यहाँ भी है DAVV इंदौर में, कि एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन इवैल्यूएशन। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है। तो केवल कहने से नहीं होता, नेचुरली हमें इनको बेस्ट दिखानी पड़ती है। और ये मेरा खुद का इंस्टीट्यूट, देखिए ये मेरा खुद का इंस्टीट्यूट। लेकिन ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है हमारी, ये हमने शो की थी 2015 में, ठीक है ना, 2015 में। तो हाँ, भारत सर का कहना सही है कि प्लीज क्लैरिफाई इफ इट इज A++। बिल्कुल सही जवाब है सर, A++ के लिए था, लेकिन लेटली जब बाद में नेक ने ये देखा कि यूनिवर्सिटीज को बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को A++ ग्रेड नहीं मिल रहा था, तो दे लोअर डाउन देयर ग्रेडिंग। नेक ऐसा कई बार करता है सर कि उनका जब उनको दिखता है कि उनके हायर स्टैंडर्ड्स को उतने इंस्टीट्यूट्स मैच नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अपनी ग्रेडिंग को लोअर करते हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है। इट सीम्स यू आर वेरी हाईली नॉलेजेबल अबाउट नेक। बिल्कुल सही, पहले A++ के लिए था, बाद में उन्होंने उनको लोअर किया था A+ के लिए। अब अगर नेक का 3rd राउंड आता है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, शायद आएगा, और उसमें क्या ग्रेडिंग रहेगी दैट आई एम नॉट श्योर, लेकिन हो सकता है शुरू में वो A++ ही रखे,
उसके बाद में वो उसको नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन A+ से नीचे कतई नहीं करेंगे। ये मेरी उनसे भी चर्चा हुई थी एक बार, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट किया था कि जीवाजी को भी मिल जाए, तो उन्होंने कहा नहीं साहब, A+ के नीचे नहीं होगा। एनीवे, जो हमारा IEHE भोपाल है, तो भोपाल जो है हमारा जो इंस्टीट्यूट है IEHE भोपाल, मैं सारे ऑनरेबल पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि IEHE.ac.in ये हमारी वेबसाइट है। IEHE.ac.in ये हमारी वेबसाइट है, इसको कभी देखिएगा, है ना, इसको देखिएगा। मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ ना, IEHE.ac.in ये मेरी वेबसाइट है। तो जब भी आपको कभी टाइम मिले, आई नो यू मे बी बिजी, बट कभी आपको टाइम मिले तो आप इसको देखिएगा, हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को। हम लोगों ने कोशिश की है कि ये जो नेट जितनी चीजें मांगता है, उन चीजों के आधार पे हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे बटन्स बने। तो आप लोग देखिएगा और फिर मुझे व्हाट्सएप करके या फोन या मेल करके, जैसे भी आपको उचित लगे, आप मुझे बताइएगा कि अगर हमारी वेबसाइट में हमको कोई और इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता हो तो हमें बताइएगा, या अगर कोई चर्चा करनी होगी तो हम करेंगे। तो 2015 में जो हमने अपनी 2 बेस्ट प्रैक्टिसेस लिखी थी, उसमें से एक थी इफेक्टिव यूज ऑफ ICT एंड ई-गवर्नेंस, दूसरा होलिस्टिक अप्रोच टू असेस एंड एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। ये हमारे संस्थान की 2 बेस्ट प्रैक्टिसेस थी, और दोनों बहुत ही वास्ट थी। जैसे कि आप देख सकते हैं, इफेक्टिव यूज ऑफ ICT एंड ई-गवर्नेंस, आप सभी लोगों को आइडिया है, आप सभी लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ईमेल पॉलिसी पढ़ी है क्या? अगर आपने नहीं पढ़ी है तो कभी टाइम मिले तो गूगल कीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ईमेल पॉलिसी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, उसके PDF को डाउनलोड कीजिए। क्योंकि जब हमने ये अपनी बेस्ट प्रैक्टिस लिखी थी और जब हमारी NAC की टीम विजिट कर रही थी, तो उनने हमसे इसके ऊपर बात की थी। एंड बाय गॉड्स ग्रेस मुझे पहले से ये आइडिया था, क्योंकि उस समय मैं ICT नोडल ऑफिसर हुआ करता था। तो हमने वो ईमेल पॉलिसी 1 साल पहले ही डाउनलोड करके सारे लोगों के बीच में सर्कुलेट कर रखी थी। देन होलिस्टिक अप्रोच टू असेस एंड एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स, इसके ऊपर भी हम लोगों ने काफी प्रूफ्स उनके सामने दिखाए थे और काफी ज्यादा उनने इसके ऊपर डिस्कस भी किया था। नरिशेटी एन भारत सर का एक रिस्पॉन्स आया है कि बट सिंस 2016 onwards not sanctioning, I think so, our college got B grade in first cycle but not revised, not received RUSA fund sir. Sir, I do believe ये हुआ है, I agree with you sir. I'm not very sure about your state, आप किस स्टेट से हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में भी ये हुआ है कि कई कॉलेजेस को रूसा सैंक्शन हुआ, लेकिन खासकर वो जो बार वाले क्राइटेरिया थे सेकेंड फेज में, जो 8th क्राइटेरिया 9th क्राइटेरिया वगैरह, उनने हमारे को भी सिलेक्ट किया लेकिन फंड्स नहीं दिए। और फिर बाद में क्या हुआ सर कि ये जो कोरोना भी आ गया ना, तो जो रूसा फेज 1 है ये 2015 से शुरू होकर 18 में खत्म हुआ ऑन पेपर, और रूसा फेज 2 जो है वो 18 से शुरू होकर 21 में खत्म हुआ, और इसी बीच में आ गया था सर कोरोना। सर इज फ्रॉम तेलंगाना स्टेट, वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, वेलकम सर। तो हमारे यहाँ भी वी फेस द सेम प्रॉब्लम सर, वी देयर वर मेनी कॉलेजेस हु वर सिलेक्टेड बट लेटर द फंड वाज नॉट रिलीज्ड, and when we discussed with them, they said कि lot of money government has been pumped for that RUSA special package and all, so it's okay now, there is no grumbling, no any problem with that. We'll try for the next cycle, let us see. Now I was searching colleges, so some best practices I found, so some best of best practices I just listed here. एक छत्तीसगढ़ से I found one additional skill acquisition program, ASAP, मतलब जैसे अपन लोग मोबाइल लैंग्वेज में लिखते हैं ना, एज अर्ली एज पॉसिबल, सेंड मी द आंसर एज अर्ली एज पॉसिबल, फिर उन्होंने कहा एडिशनल स्किल एक्विजिशन प्रोग्राम। तो एडिशनल स्किल एक्विजिशन प्रोग्राम का मतलब ये हुआ कि जो बच्चा BA BSc प्रोग्राम कर रहा हो, BCom कर रहा हो, साथ ही साथ वो कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या कोई प्रोग्राम वो कर सकता है क्या, दैट इज द मीनिंग, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एडिशनल स्किल एक्विजिशन प्रोग्राम। ये छत्तीसगढ़ में चलता है एक जगह। देन आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग, ये एक अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस है। सेटिंग अप ऑफ वेजिटेबल गार्डन, यस ऑफ कोर्स इट इज गुड, सेटिंग अप ऑफ वेजिटेबल गार्डन। आउटरीच प्रोग्राम्स टू प्रमोट इंक्लूसिवनेस, आउटरीच प्रोग्राम्स मतलब बहुत बहुत अच्छी बात है कि कॉलेज कैंपस से बाहर निकल, तो कॉलेज कैंपस में ही करें हम इंक्लूसिवनेस के लिए, लेकिन हम बाहर भी निकले, हम रूरल एरियाज में जाएं, हम स्लम्स में जाएं, हम डाउन प्रोडक्ट्स के पास जाएं, उनको हम इंक्लूड करने की कोशिश करें। ऑनलाइन लर्निंग एंड कोविड प्रिपेयर्डनेस, यस,
ये तो एक बड़ी अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस हो गई हमारी ड्यूरिंग कोविड, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास। यस, मिस चौधरी का एक जवाब आया कि फाइनेंशियल लिटरेसी कैन बी प्रोवाइडेड इन रूरल एरियाज। वेरी गुड, वेरी गुड मैडम, आई डेफिनेटली राइट दिस इन माय प्रेजेंटेशन। जब मैं फिर आपको कभी किसी को दिखाऊंगा ना, आई डेफिनेटली राइट इट। यस, एंड देन एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन क्वालिटी एनहांसमेंट प्रोसेस, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है। प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस इंटीग्रेशन विद ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, यस इट इज वेरी गुड। मतलब प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, जैसे रेड हैट लिनक्स का कोई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, या फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट का कोई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, या कोई कैम्ब्रिज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, उनको प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स को हम जोड़े विद आवर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। एडमिशन प्रोसेस में कई बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती, रेदर होनी चाहिए, रेदर होनी चाहिए। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में एक पूरा स्टेट पोर्टल होता है, ई प्रवेश जिसको हम बोलते हैं, लेकिन हम अपने संस्थान में, हमारे एक्सीलेंस में हम अपना अलग एडमिशन करते हैं। ओके, तो ये हम आपने बड़ा अच्छा मेरे को आज के डिस्कशन से यहाँ पता चला है कि हम अपनी एडमिशन। ओके, am I audible? Because I was muted by the host, now I have unmuted myself. I think I am audible. Okay, thank you. So improving teaching learning process में भी कई बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। तो मैं अगली स्लाइड्स में मैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो बेस्ट प्रैक्टिस है, इसी के लिए मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई थी। वेरी क्विकली वील गो थ्रू देम। तो जो बेस्ट टीचिंग लर्निंग बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, दैट कुड बी फ्लिपिंग द क्लासरूम, मतलब ब्लेंडेड टीचिंग वाला कंसेप्ट। और फ्लिपिंग क्लासरूम का मतलब क्या होता है, ये मेरी अगली स्लाइड में होगा। देन को टीचिंग, पीयर इंस्ट्रक्शन, मतलब एक ही क्लास को दो या दो से ज्यादा टीचर्स मिलकर पढ़ाएं। प्रोवाइडिंग एडिशनल रीडिंग्स, ऑफकोर्स हम वो करते हैं, लेकिन वो एक सिस्टमेटिक वे में हो। फॉर्मेटिव असेसमेंट हो, जिसको कि हम पोर्टफोलियो असेसमेंट बोलते हैं, कि बच्चे का केवल एक हम टर्म एग्जाम पे डिपेंड ना करें, हम उसके हर 15 दिन में एग्जाम लेते रहें और उसका अपन एक पोर्टफोलियो बनाते जाएं, ताकि अगर कोई मेन एग्जाम में बच्चा अच्छा नहीं भी कर पाया तो we can make some average assessment. And then we should try to model as you teach. रोल मॉडल वाला कंसेप्ट तो इंग्लिश में मैंने देखा कि वो करते ही हैं, लेकिन बाकी के सब्जेक्ट्स में भी कर सकते हैं। एंड लेट अस प्रमोट एंड एनकरेज द स्टूडेंट्स टू टीच, तो वो भी कई लोग प्रोजेक्ट में असाइनमेंट्स के फॉर्म में ये चीज करते हैं। एंड वी शुड ट्राई टू बी अ यूनिक टीचर बाय व्हाटएवर मींस इट इज पॉसिबल। मैं बताऊं सर आपको मैम कि मेरे लाइफ में जो मेरे को सबसे अच्छे टीचर्स लगते हैं, मेरे को नाम याद है, मैं बताऊंगा नहीं अभी यहाँ पे क्योंकि आप नहीं पहचान पाएंगे उनको। दो तीन टीचर्स हैं जो मेरे को मेरी लाइफ में अच्छे मिले, एंड बिलीव मी वो मेरे को अच्छे कभी भी अपने सब्जेक्ट के कारण नहीं लगे। You will be surprised. I was impressed by their mannerism, or I was impressed by their love and affection towards the students, their honesty, their punctuality, their discipline, their dressing sense. मतलब कई बार ऐसे होता है, जैसे आई एम अ टीचर ऑफ फिजिक्स, यू नो, मेरे कई स्टूडेंट्स को मैंने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा दी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ा दी, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ा दी, एंड नाउ दे आर वर्किंग इन बैंक्स। तो आई डोंट थिंक कि मेरी पढ़ाई हुई फिजिक्स उनको कहीं याद आती होगी, लेकिन डेफिनेटली मेरे जो बाकी की चीजें हैं, हो सकता है किसी को मैं भी अच्छा लगता हूँ। आई होप, लेट अस प्रे। यस, पारुल माहेश्वरी मैडम का एक बहुत अच्छा जवाब आया। गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज कुड बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू लोकल पीपल सोसाइटी इन द टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, बीएड इंस्टीट्यूशंस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज कुड बी प्रोवाइडेड, वेरी नाइस। सो दैट कुड आल्सो बी वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस। वेल, अभी जो हम बात कर रहे थे इसकी ट्रेडिशनल ट्रेनिंग की, फ्लिप क्लासरूम की, तो देखिए ऊपर का जो डायग्राम है दैट इज एक्चुअली शोइंग दी ट्रेडिशनल ट्रेनिंग, कि मतलब पहले हमने बच्चों को ऑन साइट ट्रेनिंग दे दी, ऑन साइट पे तो हमने बहुत कुछ पढ़ा दिया, और फिर बच्चे को बोल रहे हैं कि अब घर में जाके पढ़ाई करो। जबकि फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होता है कि बच्चे को बोलते हैं कि पहले आप घर से पढ़ के आओ, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस नहीं देते, बल्कि हम डीपनिंग ऑफ नॉलेज करते हैं ड्यूरिंग ऑन साइट ट्रेनिंग बाय द वे ऑफ डिस्कशन। तो फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब ये रहता है, मतलब एंड इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ गट्स, लॉट ऑफ करेज, कि हम पहले से बच्चों को डिक्लेयर कर दें कि बेटा हम अगली क्लास में आपको ये पढ़ाने वाले हैं, आप घर से पढ़ के आओ, और अगली बार हम सिंपल डेरिवेशन ब्लैक बोर्ड पे नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो बच्चे को किसी भी किताब में मिल जाएगा। डेरिवेशन के स्टेप्स पे चर्चा करेंगे, उनको स्किप करने की उनकी नेसेसिटी पे चर्चा करेंगे, कोई ऑल्टरनेट मेथड पे चर्चा करेंगे, या उसके हम
दूसरी मेथोडोलॉजी पे चर्चा करेंगे कि इसको ऐसे भी डिराइव कर सकते हैं। तो ये कहलाता है फ्लिप्ड क्लासरूम, ठीक है। और ब्लेंडेड क्लासरूम का मतलब क्या होता है वो देखते हैं, चलिए अपन अगली स्लाइड में। ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब ये होता है, जैसे देखिए क्लासरूम लर्निंग, आपको लेफ्ट साइड में जो ग्रीन सर्कल दिख रहा होगा कि भाई क्लास में बच्चे आ गए, टीचर्स ने उनको पढ़ा दिया। ऑनलाइन लर्निंग तो अभी सभी जानते हैं, ऑनलाइन क्लासेस हम सभी ने ली है, गूगल के ऊपर, MS टीम के ऊपर, जूम के ऊपर, या वेबएक्स जैसे सिस्टम के लिए। लेकिन अगर ये दोनों मेथड्स को हम अपनी डेली इसमें मिला लें, अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हैज प्रमोटेड दिस थिंग कि आपको लगभग 40% ऑनलाइन क्लासेस तो लेने ही, क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग की एक अलग ब्यूटी है। आप देखिए जैसे अभी भी हमारा ये जो डिस्कशन चल रहा है, जो हमारा इंटरेक्शन चल रहा है, ये ऑनलाइन मीडियम में होने के कारण आई एम एबल टू शो यू द कलर डायग्राम्स, आई एम एबल टू शो यू द कलर पिक्चर्स, जो कि अगर हम एक स्टैटिक क्लासरूम में होते तो शायद नहीं दिखा पाते, है ना। तो ये ब्लेंडेड लर्निंग में इन दोनों चीजों को मिक्स करके हम बताते हैं। एंड देन व्हाट कुड बी द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन लर्निंग, बच्चों को हम क्या चीजें प्रमोट कर सकते हैं, वी कैन प्रमोट देम द एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग का मतलब ये नहीं कि केवल मगअप कर लिया कि भाई ये किताब है इससे पढ़ लिया, नोट्स बना लिया, ऐसा नहीं। मतलब दे शुड बी एक्टिव इन द क्लासरूम, दे शुड बी एक्टिव इन लर्निंग द सब्जेक्ट। कॉन्सेप्ट मैपिंग हम उनको सिखाएं कि भाई इस कॉन्सेप्ट से आपको कौन सी चीज का फायदा मिलेगा, इसके फ्यूचर प्रोजेक्शंस क्या है, इससे आपको कौन सी चीज को समझने में मदद मिलेगी, वो हम बच्चों को प्रमोट कर सकते हैं। वी कैन प्रमोट वेरियस लर्निंग स्टाइल्स, जैसे कुछ बच्चे रीडर लर्नर्स होते हैं, कुछ बच्चे विजुअल लर्नर्स होते हैं, कुछ बच्चे ई कंटेंट से लर्निंग करते हैं, कुछ बच्चे जो है थोड़ा स्लो लर्नर होते हैं, लेकिन देयर कुड बी डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग, वो हमको देखना पड़ेगा। और वो तभी हो पाएगा जब हम ब्लेंडेड लर्निंग या फ्लिप्ड क्लासरूम वाला कंसेप्ट लगाएंगे, है ना। देन वी शुड ट्राई टू हेल्प देम इन मास्टरिंग द लर्निंग, okay, and then that is called constructivistic approach. Very nice. Constructivistic approach. I believe कि मैडम इज फ्रॉम एजुकेशन लाइन, तो मैडम इसके लिए बड़े जो टेक्निकल टर्म्स है वो यूज करनी है। थैंक यू सो मच मैम, काफी अच्छी बात है। वी कॉल दैट कंस्ट्रक्टिविस्टिक अप्रोच। वेरी नाइस, थैंक यू मैम, थैंक यू। एंड देन वी कैन प्रमोट द टीम बेस्ड लर्निंग अमंग्स द स्टूडेंट्स। तो हम स्टूडेंट्स के अंदर ये चीज प्रमोट करके हम इसको अपने इंस्टीट्यूट की बेस्ट प्रैक्टिस बना सकते हैं, यू नो। तो आज हम इस डिस्कशन के बाद ये सोचें, सीरियसली हम सोचें कि हमारे कॉलेज की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, और उससे पहले हम ये सोचें कि एज ए टीचर खुद हमारी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है ना। मतलब ये मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि कई बार हम लोग शाई होते हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कस नहीं करते, बट ट्राई टू फाइंड आउट योर ओन बेस्ट प्रैक्टिस। जब आपको अपनी बेस्ट प्रैक्टिस मिलेगी, फिर आप थोड़ा एक नजर डालिए कि आपके कॉलेज की बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, कौन सी जगह पे आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है, कौन सी जगह पे आपके पास डॉक्यूमेंटेशन की कमी है। जियो टैग फोटोग्राफ लेना तो अब सभी ने शुरू कर देना है ना, तो ये चीजें रहती। अब देखिए एक बेस्ट प्रैक्टिस जरूर सभी ने करनी चाहिए, फिर भले उसको आप नेट को दिखाओ कि ना दिखाओ, आपके सभी के इंस्टीट्यूट में कुछ एडवांस लर्नर्स मिलते हैं, कुछ स्लो लर्नर्स मिलते हैं, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एकेडमिक नॉलेज, मैडम दीप्ति कौशिक का कमेंट है, ये आई एम नॉट एबल टू understand whether it is best practice, suggestive best practice, we take it as suggestive best practice. Okay, thank you so much ma'am. तो जो हमारे इंस्टीट्यूट में कुछ एडवांस लर्नर्स हैं, उनके लिए एक हमारे पास पैकेज अलग होना चाहिए, ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग होना चाहिए, और स्लो लर्नर्स के लिए अलग होना चाहिए। लेकिन प्लीज बी अवेयर कि किसी भी स्लो लर्नर को ये फील नहीं कराना है कि यू आर स्लो लर्नर, उसको केवल कि मेथोडोलॉजी ऐसी चेंज करनी है। जैसे कोई एडवांस लर्नर है तो उसके लिए हम कुछ एडवांस टास्क देना शुरू करें, हम उसको कि बोले कि बेटा ठीक है इतना तो सिलेबस में इतना आपने पढ़ लिया, लेकिन आप देखिए कि एक नया एक वेबसाइट है उसमें आपको ये मिलेगा, इसको भी पढ़ के आइए, 2 पेज का आप एक अपना लाइए, आपने उसको एक एडवांस टास्क दे दिया। कि बच्चा एडवांस लर्नर है तो वो जरूर करेगा, वो जरूर करेगा। एंड ऐसे बच्चों को हम एनपीटीएल के ऊपर या स्वयं के ऊपर या ईपीजी पाठशाला के ऊपर हम मूक्स को लेने के लिए प्रमोट कर सकते हैं। ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज जिसको कहा जाता है, मूक्स के लिए प्रमोट कर सकते हैं, मतलब वो उसको एक एडिशनल कोर्स भी हो जाएगा। एंड देन वी कैन प्रमोट द स्टूडेंट सच एडवांस लर्नर्स फॉर अपीयरिंग इनटू वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स।
है ना, उनको अलग से कभी बुला के कि बेटा तुम ये एक रेलवे का एग्जाम होता है इसको क्यों नहीं दे देते, या तुम आईआईटी करना है, तुम एमएससी करना है तो तुम आईआईटी जैम क्यों नहीं दे देते, फिर उसको पता नहीं होगा, उसको बताइए। Thank you so much, Chaudhary ma'am. You have written a nice comment for me and I'm really obliged, क्योंकि एक्चुअली टीचर के लिए यही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ तो खैर मैं टीचर नहीं हूँ, आई एम वन ऑफ यू, लेकिन जब हम डिस्कस करते हैं तो ऐसे कमेंट्स जो हैं ये हम लोग को काफी एनर्जी देते हैं। एंड जो स्लो लर्नर्स हैं उनके जो पैकेज हो सकता है उसमें हम उनके लिए कुछ स्पेशल रेमेडियल क्लासेस हम ऑर्गेनाइज करें, हम उनके लिए कुछ मेकअप सेशंस ऑर्गेनाइज करें, क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग के लिए हम उनको प्रमोट करें, एंड ऐसे हम बच्चों को प्रमोट करें कि वो धीरे धीरे स्लो लर्नर से लर्नर और फिर लर्नर से एडवांस लर्नर की कैटेगरी में आ जाए। लेकिन ये प्रोसेस हमको एडवांस लर्नर के लिए उल्टी नहीं लगानी है, एनीवे इट इज जस्ट अ जोक। तो ये एक स्लो और एडवांस लर्नर के बीच की बात रहती है। ये एक स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे को लगती है, बिकॉज मतलब हाउ अ टीचर शुड ट्राई टू कस्टमाइज बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो एज ए टीचर हम लोगों को, एज ए टीचर हमको हमारे सब्जेक्ट के कुछ यूनिक एक्सप्लेनेशंस तैयार करने चाहिए। मतलब जैसे अगर हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो मैथ्स तो पूरे वर्ल्ड में लाखों लोग पढ़ा रहे होंगे, लेकिन उसमें आपकी यूनिकनेस क्या है, आपका यूनिक वे ऑफ एक्सप्लेनेशन क्या है, ये हर टीचर के पास होना चाहिए। हर टीचर के अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए कि हम केवल ये मान के ना चले कि हमने क्लासरूम में पढ़ाया और हमारा काम खत्म, हमारी तनख्वाह लाई है। हमको इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ के सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस के साथ कि भाई कभी इंस्टीट्यूट को हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मदद की जरूरत होगी, कभी एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत होगी, कभी कोई एक्स्ट्रा विजन की जरूरत होगी, तो वो हमारे अंदर हो। हमारे कुछ स्पेशल स्टडी रिसोर्सेज हो जो हम बच्चों के साथ शेयर कर सकें, उनके साथ हम उनको बता सकें कि बेटा इस वेबसाइट पे, इस रिसर्च पेपर से, इस जर्नल से आप पढ़ सकते हो। क्योंकि टेक्स्ट बुक और खासकर ये जो आजकल यूनिफाइड बुक्स आती दे विल बी अवेलेबल टू एवरीवन, बट इफ यू कैन प्रोवाइड सम स्पेशल रिसोर्सेज देन इट विल बी अ बून फॉर द एडवांस्ड लर्नर्स इन जनरल, इन पर्टिकुलर। एंड देन वी शुड बी रेडी टू टेक अप एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कई बार हम टीचर्स जो हैं ये करते हैं कि भाई अब ये काम तो प्रिंसिपल साहब देखेंगे, या डायरेक्टर देखेंगे, या वाइस चांसलर देखेंगे, या रजिस्ट्रार देखेंगे। बट बीइंग अ टीचर वी आर आल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट कॉलेज, दैट इंस्टीट्यूट, एंड वी शुड बी रेडी टू टेक अप सच एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमें खुद का टाइम एंड शेड्यूल मैनेज करते आना चाहिए, हमारी प्रायोरिटीज होनी चाहिए, और निश्चित रूप से हमारी प्रायोरिटीज में हमारा घर, हमारा परिवार तो है ही, लेकिन उनके बाद हमारा संस्थान होना चाहिए जहां से हम अपना ब्रेड एंड बटर अर्न करते हैं। उसके लिए अगर हम बिलोंगिंगनेस नहीं रखेंगे, उसके लिए अगर हम अपना शेड्यूल नहीं बनाएंगे, तो फिर हम किसके लिए बनाएंगे। एंड देन एज ए टीचर वी मस्ट ऑलवेज ट्राई टू कीप आवरसेल्व्स अपग्रेडेड। Upgradation and updation is a very important need of the hour, because you know अब एक ऐसा हो गया है कि हम तो रिफ्रेशर कोर्स कर लिया, अभी हमें क्या करना है, सेमिनार में तो बस गए, हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट दे दिया, हमारा कहीं एब्स्ट्रैक्ट छप गया, फिर हम गए लंच पे, हमने सर्टिफिकेट मिल गया। इट शुड बी नॉट लाइक दैट, क्योंकि नॉलेज चाहे कोई भी विषय हो आपका, चाहे आपका एजुकेशन हो, चाहे आपका मेडिकल वाला हो, चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे आपका कॉमर्स हो, लेकिन अपडेट होना और अपग्रेड होना अपने सब्जेक्ट में ये बहुत जरूरी है, और ये कभी नहीं रुकना चाहिए। इवन अगर हम एज ए टीचर रिटायर हो जाते हैं तो भी हमारा अपग्रेडेशन कभी नहीं रुकना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, we must be aware of our ethical and moral returns to the nation. हम जिस देश में रह रहे हैं, हम जिस देश से देश की मिट्टी में हम जी रहे हैं, उसके लिए हमारी कुछ एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनका हमको ध्यान होना चाहिए एज ए टीचर, और वो हमारे प्रैक्टिस में आनी चाहिए। मतलब आई एम सॉरी टू से कि आजकल अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ो तो ऐसी ऐसी आपको अनएथिकल चीजें सुनने को मिलेंगी विमेंस के साथ, या ये विमेन तो छोड़ दीजिए, आप इनोसेंट किड्स के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं कि हमको लगता है कि समाज कहाँ जा रहा है। लेकिन कई बार हमें लगता है कि हमारे घर में तो नहीं हुई, बट यू नेवर नो, यू नेवर नो। तो एक चारों तरफ हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और मुझे ये लगता है कि अगर इन सारी चीजों के ऊपर हम ध्यान रख लेंगे तो निश्चित रूप से वील इमर्ज एज अ बेस्ट टीचर। तो हम जो कुछ भी करेंगे वो हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी, और हम ही से तो फिर संस्थान बनता है, हम ही से तो यूनिवर्सिटी बनती है, तो फिर उसकी भी
बढ़ोतरी होगी. So I found 2 quotes here. The best teachers are those who show you where to go, don't tell you what to see. अपने students को अगर हम सोचने का तरीका बताएं, देखने का तरीका बताएं, मतलब कैसे उस चीज को समझना उसका तरीका बताएं, तो ये एक एक्चुअल टीचिंग है जिसके लिए बच्चे आपको हमेशा याद रखेंगे. केवल एक सब्जेक्ट रटवा देने से, फॉर्मूला रटवा देने से, फैक्ट्स रटवा देने से हम बेस्ट टीचर नहीं बनते. स्वामी विवेकानंद हैज आल्सो वेरी ब्यूटीफुली सेड, we are what our thoughts have made us. So take care about what you think. Words are secondary, thoughts live, they travel far. Swami Vivekananda. So they are very important and nice quotes which I came across while making this presentation. And I would like to say for you all कि अनगिनत जन्मों के कर्मों से बने बंधनों को जलाने के लिए आत्मज्ञान का उपहार देने वाले आप सभी महान गुरुओं को मेरा नमन, सादर नमन. Thank you so much for being so patient with me, for listening to me so sincerely, and still there is some time left with me, so that we'll leave open for the question answer in case if there are any, and you can write on the chat box, and then I'll try कि मुझसे जितना भी अच्छा हो पाएगा मैं जवाब दूंगा. Any question, any queries, any discussion you would like to have with me? Any queries regarding best practices, regarding any other criteria of NAAC, any IQAC or anything? Thank you so much. I am finding there are so many respected participants who are writing good for this session. So I'm really really grateful to you all. I'll write my mobile number on this chat forum. Hello. हाँ मैम मैं सुन पा रहा हूँ. So this was the last technical session covering all the criteria of the NAAC issues, which we covered in all our 5-day national workshops, sir. जी जी मैम. And thank you, first of all, thank you so much, sir, for such a wonderful, interactive and highly insightful session. Thank you so much, ma'am. We offer our thanks and gratitude from our entire team of SICA for such an intense lecture supported with such a wonderful illustrated PPT, sir. Thank you. We are really thankful for inspiring and mobilizing all the participants for best practices and best practices in their respective areas. And I also call upon all the academicians and participants who have joined this session so that they can share their best practices ongoing in their respective institutions. So we saw all the institutional values of compassion, in innovations, collaborations, and integrity, so that your session on the best practices was highly informative and interactive, sir. Thank you. E-waste management, waste recycling, rainwater harvesting, green campus, and whatever you illustrated in your PPTs. On behalf of the Center for Internal Quality Assurance, CICA team of Madhya Pradesh Bhoj Open University, I extend a really hearty welcome, thanks to all the participants and our expert Dr. Pragyesh Agrawal, sir. Today we had an opportunity to hear you, hear your thoughts, and will surely going to encourage us in our preparations. Thank you so much, ma'am. I believe that there is no specific question, though I have shared my mobile number and email ID also with the honorable participants. So in case if any one of them finds anything to discuss, they must. प्रतिभागियों का बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबको जुड़ने के लिए 5 दिनों के इस ऑनलाइन वर्कशॉप में. ये हमारा अंतिम टेक्निकल सेशन था जिसमें आपने अभी डॉक्टर प्रज्ञेश अग्रवाल को क्राइटेरिया 7 पर सुना बेस्ट प्रैक्टिसेस पे. It was a really wonderful and interactive session, sir. Sir, आप अभी जुड़े हुए हैं? Ma'am, I am already there. In case if there is anything to discuss, I am here, ma'am. Rajan ma'am, are you able to hear me? सर नमस्कार, मैं प्रोफेसर जॉन बोल रहा हूँ सर.
सर नमस्ते सर, नमस्ते, कैसे हैं सर आप? हेलो। जी सर, हेलो। हेलो। हाँ सर, मैं सुन पा रहा हूँ आपको, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हेलो। सर मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या उस आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है सर। आई डोंट नो सर, अभी तक तो अच्छी आ नाउ रही नाउ नाउ इट इज परफेक्ट सर, नो इशू, नाउ इट इज परफेक्ट सर। हाँ है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक सर, यू। मेरा एक सिंपल, मैं मतलब एक्चुअली हम लोगों को नेट में जाना है, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन हमारी चल रही है। जी जी और आपने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस पे जो अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया, जी तो सर। आप ये बताइए कि जैसे नॉर्मल जो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो नेक ने अपनी 6 लेट डाउन करी है, वो तो अपनी जगह है सर। और जी। आपने, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, तो आपको कभी ऐसा लगा कि ऐसी कौन सी नई बेस्ट प्रैक्टिस किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में होना चाहिए जो ज्यादा मतलब हमको एडवांटेज दे पाएगी? उसमें मार्क, मतलब हम ये मार्क पे नहीं डिपेंड कर रहे हैं, जो पॉइंट्स पे हम वो नहीं डिपेंड कर रहे हैं, पर हम ये चाहते हैं कि ऐसी कौन सी आपके भी मन में होगी कि हाँ, अगर एक ये बेस्ट प्रैक्टिस है किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपका अगर रहा हो तो प्लीज शेयर करें सर। जॉन सर, आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर। एंड आई मस्ट से कि आपने बड़ा सीरियसली सोचा कि अभी ये जो हमारा कोविड टाइम निकला है सर, तो कोविड टाइम के बाद ऐसे हुआ है कि हम लोगों ने इतनी ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स किया है, हम लोगों ने ब्लेंडेड टीचिंग शुरू की, हम लोगों ने फ्लिप क्लासरूम शुरू किया। तो ये ऑनलाइन मैकेनिज्म को यूज हम कैसे इफेक्टिवली अब भी कर सकते हैं, मतलब इससे कई बेस्ट प्रैक्टिसेस का रास्ता खुलेगा सर। हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करना शुरू करें, ई कंटेंट डेवलपमेंट शुरू करें सर, ई कंटेंट में नए नए डायमेंशन हम क्रिएट करें। ये सर्टेनली एक बहुत अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है सर, टीचर के लिए भी और इंस्टीट्यूट के लिए भी सर। यस सर, सर तो नोट कर लेते हैं सर, पक्का एलएमएस हम कर सकते हैं सर, एलएमएस वी कैन स्टार्ट, क्योंकि जी। अभी हायर एजुकेशन में भी लेटर निकाला है एलएमएस पे, तो दूसरा एलएमएस पे एक हम एक सोच चीज सकते हैं। मेरे दूसरा एक चीज और मेरे को लगती है सर कि आजकल ये जो इंक्यूबेशन सेंटर्स का जो कंसेप्ट चल रहा है सर, राइट सर। हाँ हाँ, स्टार्टअप्स का और इनोवेशंस को प्रमोट करने का एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। तो अगर हम हर कॉलेज, हर संस्थान ये देख सके कि हमारे यहाँ की ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम इंक्यूबेट करने में मदद कर सकते हैं, तो दैट कुड बी समथिंग वेरी गुड सर। मतलब जिससे हम बच्चों के नए नए आइडियाज को पेटेंटिंग तक कैसे ले जाना है, मतलब प्रोडक्ट से मतलब उसको हम क्या बोलते हैं कि एक आइडिया से लेके प्रोडक्ट तक हम चीजें कैसे ले जाएंगे, तो कुछ कॉलेजेस में इसके ऊपर भी काफी अच्छा काम हो सकता है सर। दैट इज व्हाट आई थिंक। ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आपका जो आइडिया है उसमें मेरे को सबसे ज्यादा जो अच्छा लगा वो ये है कि हम एलएमएस पे कुछ काम, क्योंकि हमारा मेन क्योंकि दिस इज ओपन यूनिवर्सिटी एंड वी हैव टू प्रोवाइड सेल्फ स्टडी मटेरियल टू ऑल दी स्टूडेंट्स। तो एलएमएस अगर हम डेवलप करेंगे, तो एलएमएस डेवलप करने से हमको ज्यादा अच्छी तरीके से हेल्प करना है। बाय ऑल मींस। थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू सर, थैंक यू सर। Thank you once again, sir. वेलकम मैम। So, ma'am, I believe if there is no other question, may I be permitted to leave now? Yes, sir, you can leave, sir. Thank you so much, ma'am. Have a Thank you nice once day. again. Thank you again. Thank you.